I will take few minutes, Sachinji, before you take over. On behalf of ICC Tri-Valleys, Yatanji, we are very thankful that you could give us so much time in the morning. And everybody may remember he gives this program from India. So must be getting up very early, 4 o'clock or something. So thank you, Yatinji, and hope we will continue with another program. May not be now. This is our last one for Yoga Vashishta. It's satsang number 7. So we will continue also with some other topic. Right now, not decided yet. So we will be in touch with all of you. In this 7 satsang, we learned a lot of stories, because all the bodh is given to us through the stories, and every story gives us what is the man buddhi, what is the ahankar, it is all up to us how we take those stories and practice in our life also. So every story, I remember that Kalaki, the one was wo kya thi, Bhutni or whatever you call her. So all these stories I still remember in the Varagya mein, when we talk Utpatti Prasan mein bhi stories thi. Kalki, I think Rakshasi was Kalki Rakshasi ki story thi. So many stories were there. It's very difficult to remember every story. Only from every story we take one word, one bodh, and that enriches our life also. So we are very thankful, Yatinji. So I hope we all are drinking the nectar of Yoga Vashishtha, which was given to us by Yatinji. So let's give a big hand and give a big clap to Yatinji, please. Everybody is muted. And my most important one, the Varagya, when you talk about the Varagya in, I think it was a Prakaran Upsham, right? Yatinji, Varagya, you talked about that. That was one of my favorite one in this Yoga Vashishtha, so very interesting. Thank you so much. Okay, Sachinji, thank you so much. All right. Veeraji also wanted me to remind little bit of Yatin's background. He came from very high-end career into the computer industry. Then he left his job and he's currently doing PhD into yoga and traditional things. He's also a yoga and meditation teacher. But on the real life, he does opposite. He teaches people how to invest money. So he also teaches people how not to get tangled in Maya. But he also teaches how to manage real Maya, also the matter and energy both. So now we get to see both of his personalities. That so he knows both the worlds, the absolute and relative. But today he's going to talk about not relative, about absolute. And this was very interesting time we had of 7 months is a long time. And also we are grateful, like Veeraji said, for your dedication that he has to wake up probably 3:30 in the morning to be with us with all the time difference and everything. And also give a discourse of 2 hours. 2 hours pass just like blink because there are so many beautiful stories and a lot of people remember a lot of things differently. So it's very interesting session for all to really dive in some very powerful, simple learning through the stories and also how you can dive deep into the spiritual realm without making big stigma. You can be from any belief system, but it becomes very universal offering. So there are some requests for Yatinji to provide all the 7 recordings in one order. I will explain to you and then we can share. Everybody want to cherish this treasure and watch it.
again and again till they remember whole thing. So I will now hand it over to you and let's go. So welcome Yatinji, you are muted. So you unmute. Yeah, thank you. We'll start. I'm just setting my background. Looks like it got changed. So, Take your time. quick second. And for any reason, if you don't have it, it's fine. As it is, you are all right. No, it's seems to be something different. Anyway, fine. It is such a pleasure to contribute to these things. Such a great chapter where people. आवाज आ रही नहीं? Yes, we can see that. Now we Yes. can see. And you can hear me also, right? Yes. Properly. तो इतनी अच्छी हिस्ट्री आईसीसी ट्राई वैली की और ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना इज रियली ग्रेट प्लेजर. I don't know how I can express my gratitude towards all of you because in the beginning itself I had mentioned, मैंने एकदम शुरू में ही कहा था, आप लोग को पता नहीं कितना ये योग वशिष्ठ का फायदा होगा, पर मुझे बहुत होता है. Whenever I speak about it, so it is a journey within for me. Then whether it is reciting the stories or it is meditations, जो भी है. So I'm really grateful to you for giving this opportunity to everybody, to Yogendra ji, to Dr. Sachin, to Veena ji and entire team. आप लोग बड़े उत्साह से आते हैं, सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. तो आज हम फिर से योग वशिष्ठ की एक छोटी सी समरी लेंगे. तो योग वशिष्ठ की शुरुआत हमने श्री राम जी के वैराग्य से की थी. छोटी छोटी कहानियां उसमें हैं. योग वशिष्ठ में कहानियां आती हैं. इस कहानी में श्री राम जी के साथ जो हमने पहले देखा था कहानी में कि उनके एज करीब करीब 16 इयर्स हो रही थी. उस समय वो अपनी शिक्षा पूरी करके, एजुकेशन पूरा करके वशिष्ठ ऋषि से आश्रम से आए घर पे, फिर तीर्थ यात्रा पे निकल गए और वहां से आने के बाद कुछ दिनों बाद फिर उनके ही मन में एक तरह का वैराग्य आ गया और उसका कारण उन्होंने बताया कि मनुष्य जन्म लेता है और जन्म लेता है तो उसके पीछे उसकी इच्छा होती है कि उसे आनंद मिले, सुख मिले. लेकिन इस आनंद और सुख के लिए जो जो भी उसे करना पड़ता है उसमें कहीं पर भी आनंद नहीं है, कहीं पर भी खुशी नहीं है. ऐसा लगता है आनंद मिला है करके, लेकिन वो कुछ क्षणों के लिए रहता है, कुछ समय के लिए रहता है. फिर से नए आनंद के लिए उसे प्रयत्न करने पड़ते हैं. उठ के भाग दौड़ करो. तो ये जो डिजायर्स होती है, इच्छाएं होती है, कभी समाप्त नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती. और एक इच्छा खत्म हो गई तो दूसरी शुरू होती है, दूसरी शुरू हो गई तो तीसरी शुरू होती है. तो श्री राम जी कहते हैं कि ये कुछ बात जच नहीं रही कि रोज उठो और आनंद के पीछे कुछ करने के लिए काम करते रहो और फिर भी जब मृत्यु आएगी उस समय इच्छाएं अधूरी रहेगी, डिजायर्स अनफुलफिल रहेगी. तो उन्हें फुलफिल करने के लिए फिर से नया जन्म लो, फिर से वही नई नई इच्छाएं और फिर से भागदौड़ चालू रखो. तो बर्थ एंड डेथ, जन्म और मृत्यु, इसके बीच में इंसान हमेशा भागते ही रहेगा. तो ये क्या माया है, क्या खेल है, इसमें कुछ मुझे इंटरेस्ट नहीं लग रहा है. एज इफ एक कोई नेवर एंडिंग रेस है जिसमें हम भागने वाले हैं और उसका कोई पता नहीं कब तक भागना है करके. तो उस समय उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी स्थिति में, ऐसी इस तरह की खेल में कोई रुचि नहीं है.
आत्महत्या करना पाप है, इसलिए वो इस तरह का जीवन तो त्यागेंगे नहीं, लेकिन जीने में भी उन्हें कोई मजा नहीं है। उन्होंने कहा अगर अ, इसका कोई कारण पता हो तो कुछ करूं, वरना फिर मुझे तो ऐसा जीवन नहीं जीना है। आप ऋषिवर जो भी वहां पे थे उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे अपना जीवन त्यागने की अनुमति दे दें। उस समय विश्वामित्र महाराज दशरथ के दरबार में थे, वशिष्ठ ऋषि थे। श्री राम जी ने उनसे कहा कि मैं तो चलो छोटा हूँ, अज्ञानी हूँ, आप लोग तो ज्ञानी हैं, और जो मैं बता रहा हूँ वो तो आपको भी पता है। तो ये सब होने के बाद भी आपके पास कुछ तो रीजन है कि आप कुछ यज्ञ करते हैं, कुछ आश्रम चलाते हैं, कुछ काम करते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि जीवन जिया जाए और कैसे जिया जाए? आपके चेहरे पे हमेशा वो एक तरह की शांति दिखाई देती है, उसका कारण क्या है? तो वो ज्ञान आप मुझे दीजिए, और अगर आप समझते हैं कि मैं उसके योग्य नहीं हूं, तो फिर जीवन त्यागने की अनुमति दीजिए। उस पर वशिष्ठ और विश्वामित्र ने श्री राम जी को उपदेश किया। शुरू में विश्वामित्र ने उपदेश किया, उसके बाद फिर उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से विनती की कि आप श्री राम जी के कुलगुरु हैं, तो आप उन्हें ये सारा ज्ञान दीजिए जो ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया था। और फिर वशिष्ठ ऋषि ने अनेक कहानियों के द्वारा श्री राम जी को जीवन कैसे जिया जाए, जीवन क्यों जिया जाए, इसके बारे में उपदेश किया। वही पूरा योग वासिष्ठ है। योग वासिष्ठ इसलिए कहते हैं कि ये अ, वशिष्ठ ऋषि ऋषि ने दिया है, और योग का ज्ञान है। अब योग का अर्थ क्या होता है? तो योग तो हम काफी लोग यही समझते हैं कि हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो वो योग का भाग कहा जाता है। लेकिन योग केवल उतना ही नहीं है। ये तो एक आसन प्राणायाम वगैरह ना, ये एक एंड गोल अचीव करने का एक मार्ग है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार तो अष्टांग योग कहे गए हैं, लेकिन अंतिम स्टेट उसकी समाधि होती है। पर वो भी एंड गोल क्या है? तो वो वही है कि जहाँ पे हम अपने आप को ऊपर वाले से, परमेश्वर से अलग समझते हैं। तो हम जो दो हैं उनको जोड़ना, इसीलिए उसको योग कहते हैं। योग मतलब मिलन। तो जो मैं और वो, ये जो भूमिका होती है, जो हम एक दूसरे को अलग अलग समझते हैं, उसको एक समझना, यही इसको योग कहा गया है। तो एक होने का अनुभव लेना, वो एक योग है। तो कैसे हो सकता है? तो वही सारा ज्ञान वशिष्ठ ऋषि ने दिया। कई सारी कहानियां उन्होंने बताई। उसमें योग वासिष्ठ को करीब 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहला चैप्टर है वैराग्य प्रकरण, जो श्री राम जी का वैराग्य था उसका वर्णन था। उसके बाद उसके बाद का है मुमुक्षु व्यवहार, जिसे मोक्ष की अपेक्षा है, इच्छा है, उसका व्यवहार कैसे हो, वो उसमें किस तरह से प्रयत्न करने चाहिए। वशिष्ठ ऋषि ने उसमें बताया कि बिना प्रयत्नों के तो कुछ मिलेगा नहीं। तो प्रयत्न कैसे होने चाहिए, शुभ प्रयत्न कौन से होते हैं, अशुभ प्रयत्न कौन से होते हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो जो शास्त्रों में बताए हैं वो, और जो गुरु वचन है उसके अनुसार चलो, उसी के डायरेक्शन पे रहो, तो सारे प्रयत्न शुभ रहेंगे। यूजुअली हम लोग वही गलती करते हैं जीवन में। हम जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, तो दिन में, लाइफ में तो कई बार डिसीजन लेने होते हैं, छोटी छोटी बातों में होते हैं। किसी से आर्ग्यूमेंट करे कि नहीं, बड़ों से किस तरह से बिहेव करें, या छोटों से किस तरह से बिहेव करें, ये जो सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, वहां पे हमेशा हमें सतर्क रहना होता है। हर बात पे ये विचार आए कि इस क्षण अगर मेरे गुरुदेव होते, या अगर इस क्षण मेरे परमेश्वर होता, मेरे जो भी आराध्य है वो है, तो किस तरह से बिहेव करते, किस तरह से निर्णय लेते। तो यूजुअली हम वो नहीं करते। हम अपने दिमाग से लगते हैं कि हाँ वो कहा होगा ऐसा कुछ, लेकिन मुझे उसका नहीं, मैं तो बस अपने ही मन से करूंगा। तो उसके परिणाम भी फिर स्वाभाविक है, भुगतने पड़ते हैं। वही हमारे कर्म बन जाते। जब कोई कार्य करते हैं जिसमें कोई इंटेंशन नहीं, बस एक केवल सिचुएशन ऐसी है, ऐसी सिचुएशन में शास्त्र ऐसे कहते हैं वो किया जाए, तो हम उस तरह से बिहेव करें, अगर इतना हम रैशनली विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो फिर कोई कर्म बनने का कोई कारण नहीं।
श्री राम जी, श्री कृष्ण, बड़े बड़े संत ये मुक्त इसलिए थे क्योंकि उन्हें अपने ही कुछ सोच थी, कोई उद्देश्य था, ऐसा नहीं था। कार्य है, श्री राम जी को वशिष्ठ ऋषि ने बाद में यही बताया कि आप तो ज्ञानी हो चुके हो, तो इसका अर्थ ये नहीं कि अभी आराम से बैठ जाओ। आप एक राजा बन के जन्म लिए हो, तो आपको एक राजा की तरह काम करना पड़ेगा, वही आपकी भूमिका रहेगी। तो हमें जीवन जीना भी है, अति श्रेष्ठ कार्य भी करने हैं, क्योंकि हमारे आदर्श ही श्रेष्ठ है। श्री राम जी है, श्री कृष्ण है, शंकराचार्य है, जो भी हम जिनको मानते हैं वो सब श्रेष्ठ है। उन्होंने कभी ऐसे एक जगह जाके बैठ गए और सब छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं है। तो जीवन में कार्यरत रहना है, लेकिन टोटली डिस्पैशनेट, पूरा वैराग्य। तो एक्शन में वैराग्य, एक्शन में हम हीरो रहेंगे, लेकिन अंदर में मन ही मन में हम पूरी तरह से एक वैराग्य में रहेंगे, जैसे हम कुछ कर ही नहीं रहे। यह भूमिका, इसके बारे में अ, वशिष्ठ ऋषि ने पूरे अगले 5-6 चैप्टर्स में वो सारी भूमिका बताई। मुमुक्ष व्यवहार में व्यवहार कैसे हो, उसके बाद फिर इस जीवन का स्वरूप समझाने के लिए उन्होंने उत्पत्ति प्रकरण बताया कि ये सब निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद ये बना तो टिका कैसे, वो स्थिति प्रकरण में। फिर मन ही मन में इसकी शांति कैसे हो, ये उपशम प्रकरण में कहा है। उसके बाद फिर आता है निर्वाण प्रकरण, और निर्वाण चैप्टर में 2 पार्ट बनाए हैं, और उसमें फिर जीवन कैसे जिया जाए, मुक्ति कैसे हो, उसमें योग मार्ग भी बताया। अगर हमें याद है तो काकभुषुंड करके एक हमने कहानी ली थी, जिसमें काकभुषुंड एक कौवा है जो कई कल्पों तक जीवित रहे हैं, और उन्होंने बताया कि प्राण के माध्यम से अपने आप को कैसे स्थिर रखा जाए। योग वशिष्ठ में ये दोनों मार्ग बताए हैं, एक है ज्ञान का और दूसरा है प्राण का। तो सभी लोग ज्ञान नहीं समझ सकते, ऐसा अगर लगता है तो फिर प्राण के मार्ग से चल के, मतलब प्राण, हमारे श्वास के ऊपर ध्यान देके प्राणायाम के माध्यम से हम मन को शांत कर सकते हैं। तो इसमें हमने कई सारी कहानियां देखी। इन जनरल अगर कुछ कहा जाए, इनका सारी कहानियों का सारांश, तो हम ज्ञान में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ये लेने के बदले, इंफॉर्मेशन क्या होती है कि पतंजलि योग सूत्र जैसे अगर लिया जाए, तो उसमें कौन से 8 योग के अंग हैं, अष्टांग योग कहा गया वो है, तो उनका नाम याद रखना। योग वशिष्ठ में 6 चैप्टर है, उनका नाम याद रखना, या फिर कितने श्लोक है, क्या कहानियां हैं, ये सारी बातें याद रखना, ये इंफॉर्मेशन होगी। नॉलेज क्या है? नॉलेज ये है कि भाई ये मेरा जीवन है, इस जीवन में मुझे आनंद में रहना है, और इसीलिए मैंने जन्म लिया है। तो अपने आप को आनंद कैसे रखा जाए, अपने आनंद रहने के लिए, आनंदी रहने के लिए, खुश रहने के लिए मुझे अच्छी हेल्थ की जरूरत है, शारीरिक और मानसिक दोनों, और ऑफ कोर्स सामाजिक भी, सोशल हेल्थ भी होती है। तो ये अच्छे से मेंटेन किया जाए, इसलिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है शरीर अच्छा रहे, शरीर स्वास्थ्य सबसे पहला है क्योंकि वो दिखाई देता है, उसके साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सुचारू रखने के लिए, मेरी श्वास ठीक हो, श्वास ठीक हो तो शरीर अच्छा रहेगा। श्वास कैसे बिगड़ती है? तो हमारी भावनाओं के द्वारा बिगड़ती है। तो इमोशंस को ठीक किया जाए। इमोशंस को कैसे ठीक किया जाए? तो समझे कि जो भी चीजें, जो भी इमोशंस बिगाड़ते हैं, उनके पीछे ना लगे लगे, अपने आप को ज्ञान में रखें। और यहाँ पे ज्ञान का इंपॉर्टेंस आता है कि आजू बाजू जो कुछ हो रहा है वो सब एक एक प्रकार से अनदेखा करके, उसके बाद अपने आप में, अपने अंदर में रहे, यही असली ज्ञान है। तो ये कैसे किया जाए? तो इसीलिए फिर योग वशिष्ठ, भगवत गीता और ये सारे ज्ञान, ये सारी कहानियां, ये हमें उपदेश करती है कि जो भी देख रहे हो, जो भी दृश्य है, जो चाहे अंदर है मन के या बाहर है, दोनों तरफ दृश्य दृश्य है। वो ऐसा नहीं कि आंखें खोल के ही देख सकते हैं, अंदर में भी हमारे दृश्य होता है। ये सारे टेम्पररी है, इन दृश्यों को इग्नोर करो। हम परमानेंट है, आजू बाजू में जो भी हो टेम्पररी है। तो इन टेम्पररी के वजह से अपने आप को, हमारा आज का समय और भविष्य का समय, इसको बिगाड़े नहीं। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। यूजुअली हम, हमारे आजू बाजू जो भी होता है,
उसकी वजह से अपने इमोशंस बिगाड़ते हैं, इमोशंस से हेल्थ बिगड़ती है, श्वास बिगड़ती है, और फिर से मन बिगड़ता है, हम सफर होते रहते हैं। बेटर यही रहेगा कि समझ ले, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, माता पिता, बच्चे, जो भी हो, एक लेवल तक अपने कर्तव्य में उलझे रहे, लेकिन उसके बाद ये ध्यान में रखे कि ये सब टेम्परेरी है। हाँ, और हम परमानेंट है, क्योंकि अगले जन्म में यही हमारे साथ वही भूमिका में रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस बात का ध्यान रहे कि इनको अपने से एक हद तक ही जोड़े रखना है, उसके बाद फिर बी विद द सेल्फ। बार बार योग वशिष्ठ में उपदेश आए हैं कि बी विद द सेल्फ, अपने आप में रहो, अपने आप में रहो, क्योंकि हम ही परमानेंट है। हम वशिष्ठ ऋषि ने जब व्याधि की बात की थी, आधि और व्याधि ऐसे दो विषय हैं। आधि मतलब जो मन के विकार है, और व्याधि मतलब शरीर के विकार। वशिष्ठ ऋषि ने एक बहुत सुंदर उपदेश इन सारे प्रकरणों से दिया था। वो उपदेश ये था कि दो तरह की व्याधि कही गई है, दो तरह की बीमारियां कही गई है। एक है इस जन्म की, और दूसरी है जो परलोक की व्याधि कहते, इसके इस जन्म के बाद की, या जन्मों के बाद की। इस जन्म की जो भी व्याधियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, उसे हम मेडिसिन से, मंत्रों से, या और कुछ तरीकों से हम फिक्स कर सकते हैं। इस शरीर के ऊपर ट्रीटमेंट करके उनको ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये हर जन्म में आती ही रहेगी। शरीर लिया हमने तो फिर से कोई ना कोई बीमारी आएगी, फिर चालू रहेगा। तो इसके पीछे लगना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए, नहीं इसी बात पे। लेकिन पूरा फोकस ये परलोक की व्याधि पे, परलोक मतलब जन्मों के बीच में या जन्मों के बाद में जो व्याधि आती, उसमें। तो उसके लिए ज्ञान के मार्ग पे चले, और एक बार समझ लिया कि ये जीवन का स्वरूप ऐसे ऐसे, बार बार हम यहाँ पे आएंगे, लोग बदलते रहेंगे, स्थिति बदलती रहेगी। तो वो ज्ञान लेके अपने मन को शांत किया जाए, तो एक तरह से हम परलोक की व्याधि जो है, वो जो बीमारी है, उसको फिक्स करें। एक बार वो ठीक हो गई कि हमने पूरे जीवन का ज्ञान ले लिया, तो ये ऑब्वियस है कि इस जीवन में भी जो बीमारियां हैं वो अपने आप ठीक हो जाएगी। ऐसा कहा है, डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, मन अगर स्थिर रहा, शांत रहा, तो फिर कोई रोग होने की संभावना कम होती है। रोग का कारण तो मुख्य मन ही है। तो इस मन को ठीक किया तो रोग भी ठीक हो सकता है। यही बात वशिष्ठ ऋषि ने कही कि परलोक व्याधि पे ज्यादा ध्यान दो। परलोक व्याधि ठीक करने के लिए ज्ञान और योग। योग हमने पिछले कुछ सत्रों में यह भी देखा कि हम ध्यान कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, कई सारी बातों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, पर इनका अपना अपना समय है। ध्यान किया हमने, 20 मिनट तक बैठ गए तो हो गया, उस समय तक हमें अपने आप में एकदम अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पर वहां से बाहर निकलते तो वापस दुनिया शुरू हो जाती है। तो ये जो दुनिया है, ये भी हमारे ऊपर कुछ प्रभाव करती है, हमको थोड़ा क्या कहेंगे, डिस्टेबलाइज कर सकती है। तो इसे ठीक करने के लिए, इसे समझने के लिए फिर ज्ञान का मार्ग हमेशा अपना होना चाहिए। ज्ञान क्या करता है कि जो हमारे बिहेवियर है, जो हमारे इंप्रेशंस, ऐसी सिचुएशन में ऐसा करो, मिस ऐसी सिचुएशन में वैसा करो, ये जो हमारे इंप्रेशंस बने हुए हैं, उसी को ठीक करता है, उसी को तोड़ता है। एक हमारी अज्ञान की दीवार बनी है कि कुछ हो गया तो दुखी होना चाहिए, कुछ हो गया तो गुस्सा होना चाहिए। ये जो हमारे इंप्रेशंस बने हैं, ये जो अज्ञान की दीवार बनी है, ये ज्ञान के हथौड़े से हम तोड़ तोड़ के वहां पे पूरा ट्रांसपेरेंट जो भी है, मैं और शास्त्र, मैं और गुरु वचन, वो एक साथ रह के हम टोटली ट्रांसपेरेंट हो जाए। जीवन कैसे हो कि अगर हमारे बारे में किसी ने विचार किया कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये आदमी क्या करेगा, तो उसका उत्तर सामने वाले के पास होना चाहिए। हम अनप्रिडिक्टेबल ना हो। और प्रिडिक्टेबल कब कैसे हो सकते हैं हम लोग, कि कोई भी कहेगा हाँ, अगर इसका बिहेवियर ये सिचुएशन में जज करना है, तो ये नेचुरली जो बुक्स में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, वही करेगा। तो कोई भी आसानी से बता सकता है कि हाँ, इसका पिछली बार इंसल्ट हुआ था, लेकिन ये फिर भी अपना कार्य करेगा, ये मान अपमान के परे है। ये क्लियरली बता देना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। तो वैसा बिहेवियर हो कि एक खुली किताब बन जाए, कि हमें कोई पढ़ सके, उसके लिए कोई एफर्ट्स लेने की जरूरत ना हो, ये आसानी से समझ में आ जाए, और वही है जीवन जीना। तो हमने पिछले बार तक जो भी कहानियां पढ़ी थी, उसमें
चुड़ाला और शिखीध्वज, इनकी भी कहानी हमने देखी थी। अम, योग वशिष्ठ के अंतिम चरणों में कुछ 2-3 कहानियां आती हैं। हम आज वो कहानियां लेते हैं योग वशिष्ठ की। इसके बाद फिर ये सीरीज की समाप्ति होगी। फिर हम देखेंगे आगे कुछ हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके बारे में विचार करेंगे। कई कहानियों में, योग वशिष्ठ में जो बड़े बड़े 2-3 आख्यान कहे, कहानियां कही, उसमें एक है पाषाण आख्यान। पाषाण आख्यान की कहानी कुछ ये है कि वशिष्ठ ऋषि, और इसमें छोटे छोटे इंसिडेंसेस दिए हैं, तो हम कहानियां थोड़ी शॉर्ट में लेंगे, उनका मतलब जानने की कोशिश करते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि कभी उन्हें ऐसा लगा कि कहीं जाके ध्यान करना चाहिए, थोड़ा ये सारा संसार जो चल रहा है इसे थोड़ा बाजू हटके जरा विश्राम करें। तो वो आसमान में कहीं चले गए। कई जगह उन्होंने एक स्पेस देखने का प्रयत्न किया जहां पे शांति मिले। तो ऐसे ढूंढते 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 वो कई ब्रह्मांडों के परे चिदाकाश में जाके एक जगह शांति से बैठ गए। वहां पे उन्होंने एक छोटा सा झोपड़ा बना लिया, और उस झोपड़े में फिर उन्होंने अपने शरीर को रखा और विचार किया कि अभी मैं यहाँ पे ध्यान करूंगा। उस जगह उन्होंने कुछ समय तक ध्यान किया। ध्यान करने के बाद जब वहां से उनका ध्यान खुला, उन्होंने एक अपनी, जैसे हम अलार्म लगाते हैं कि कल सुबह 4 बजे उठेंगे, तो कई बार अपने आप से जैसे नींद खुल जाती है, वैसे मेडिटेशन में भी होता है कि हमने तय कर लिया कि इतना समय मेडिटेशन होना है, तो नेचुरली उतना समय में हो जाता है। तो उसके बाद फिर वो अपने ध्यान से बाहर आए, तो उन्हें कहीं एक किसी स्त्री की आवाज सुनाई दी, और वो आवाज किसकी है ये देखने के लिए वो निकल पड़े। तो उन्हें एक स्त्री दिखाई दी, वो कुछ तो ऐसे ही गान गा रही थी, और उसको देखा वशिष्ठ ऋषि ने, और उसको अनदेखा करके फिर ऐसे ही ब्रह्मांड वगैरह देखने के लिए, हम जैसे जाते हैं ना घूमने के लिए, वैसे ही वो भी घूमने के लिए निकल पड़े। वो स्त्री उनके पीछे पीछे आ गई, और फिर वशिष्ठ ऋषि ने पूछा उससे कि क्या चाहती हो। तो उसने कहा कि उसने अपनी कहानी बताई कि मेरे पति ने वो एक ऋषि है, साधु है, उन्होंने मुझे निर्माण किया, लेकिन मुझसे विवाह नहीं किया, और मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, बस ऐसे ही अपने ध्यान में बैठे रहते हैं। तो शुरू में तो मुझे बड़ी इच्छा थी कि उनके साथ विवाह रहे, उनके साथ मैं संसार रखूं, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं, वो अपने ही ध्यान में बैठे रहे। तो काफी समय तक मुझे बहुत चिड़चिड़ापन हुआ। लेकिन अभी सब इच्छाएं मेरी निकल चुकी है, सब इच्छाएं मर चुकी है। तो मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ आए और उनसे थोड़ी बात करें, उनसे उपदेश करें, और अभी तो हमारे जीवन का अंतिम समय आ रहा है, तो इस अंतिम क्षण में आप मुझे मुक्ति दे दे, उन्हें भी मुक्ति दे दे, हमें ज्ञान दे दे। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा चलो ठीक है, देखते हैं कहाँ जाना है। तो उस स्त्री के साथ वशिष्ठ ऋषि निकल पड़े। और सचिन जी सबको म्यूट करेंगे प्लीज, कुछ कुछ अनम्यूट। Okay, now you can. राइट। तो वशिष्ठ ऋषि उस स्त्री के साथ इस ब्रह्मांड में नहीं कह सकते, इस चिदाकाश में एक जगह गए जहां पे एक बड़ी सी शिला थी, इसको पाषाण कहते हैं। उस शिला के पास गए और उन्होंने कहा कि अब कहाँ जाना है। तो उस स्त्री ने कहा हमारा तो जीवन इस शिला के अंदर ही है, और यहीं पे हमारा ब्रह्मांड है, हमें इसके अंदर जाना है। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, एक केवल
शिला ही है। वो स्त्री भी बोल पड़ी, हाँ मुझे तो यहाँ पे ही मेरा ब्रह्मांड था, अभी तो केवल अ, एक शिला दिख रही है। फिर थोड़ी देर बाद उस स्त्री ने कहा कि अभी मुझे समझ में आ गया कि मैं आपके साथ बातों में उलझ गई थी। मैंने बार बार आपको ये कहा कि हमारा जीवन, हमारा ब्रह्मांड एक शिला के अंदर है, तभी ये मुझे शिला जैसे ही दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम अपने सूक्ष्म रूप में आ जाए, अपने आप में गए, तो फिर हम इस शिला के अंदर जाके उस ब्रह्मांड में, उस पत्थर के अंदर जाके हमारा ब्रह्मांड देख सकते हैं। उसने कहा, देखो मुनिवर, थोड़ा अज्ञान हो गया तो अपना स्वरूप भूल गए, और अपना स्वरूप भूल गए तो ये दृश्य अभी समझ में नहीं आ रहा है। छोटी सी बात कही उसने। हम ऐसे ही किसी के साथ किसी बातों में उलझ जाते हैं और फिर अपने कार्य को, अपने आप को भी भूल जाते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि हम कौन हैं। जब भी किसी ग्रुप डिस्कशन में रहेंगे, किसी चर्चा में रहेंगे, तो एक अवेयरनेस होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस लिए हैं। क्या हम ऐसे ही गॉसिप में इन्वॉल्व होते जाते हैं, और अपना जो असली रूप है कि जो हम शांत हैं, जो हम इन सारी बातों से परे हैं, तो उसके तरफ सचेत सचेत रहे, सजग रहे। नहीं तो बस बह जाते हैं बातों में, पता नहीं क्या क्या हम करते रहते हैं। थोड़ा अलर्ट रहे। उस स्त्री ने भी एक छोटा सा मैसेज यहाँ पे दे दिया। वशिष्ठ ऋषि और वह स्त्री फिर अपने रूप में चले गए, और उस उन्होंने फिर उस शिला के अंदर जाकर देख सके कि हाँ, वहां पे सच में एक ब्रह्मांड है। उस एक ब्रह्मांड में वो गए। उन्होंने देखा, एक वहां पे व्यक्ति थी जो ध्यान में बैठी थी, बूढ़ी हो चुकी थी। तो उस स्त्री ने उस पुरुष से, उस व्यक्ति से कहा कि देखिए, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, वशिष्ठ ऋषि हैं, तो आपको उठ के उनका स्वागत करना चाहिए। इतने श्रेष्ठ व्यक्ति हमारे घर में आए हैं और आप बैठे हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। फिर उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली, उन्हें प्रणाम किया, और वशिष्ठ ऋषि ने उनसे पूछा सीधे सीधे कि ये स्त्री ऐसे ऐसे कह रही है कि आपने इसको निर्माण किया, लेकिन और अपने संसार के लिए निर्माण किया, और पर आपने इसके साथ विवाह नहीं किया, इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, ऐसी इसकी कंप्लेंट है, तकरार है, तो क्या बात है। तो उसने कहा कि ये सच है कि मैंने इसे निर्माण किया, लेकिन इतना ही सच है कि इसको मैंने सिर्फ निर्माण किया। ये जो समझ रही है कि मैं इससे विवाह करने वाला था, या इसके साथ फिर संसार बसा के अपना जीवन बिताने वाला था, ये इसकी भावना है। ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, मैंने सिर्फ इसका निर्माण किया। और इसके बाद फिर उनमें कुछ चर्चा हुई इधर उधर की। तब उसने कहा, उस पुरुष ने, कि अभी हमारा ये जो ब्रह्मांड है, हमारा जो विश्व है, ये अभी समाप्त होने वाला है। तो आप हमें आशीर्वाद दें कि हम इसके बाद मुक्त हो जाएं। फिर वशिष्ठ ऋषि ने पूछा कि आप कौन है, क्या स्वरूप है, ये सब क्या है। तो उसने कहा, इसका, ये विश्व का रचयिता मैं हूँ, तो नेचुरली मैं ब्रह्मा हूँ। और ये जो देख रहे हैं स्त्री, ये है मेरी माया। माया को मैंने निर्माण किया, लेकिन मैं माया के साथ कभी विवाह नहीं कर सकता। जो ब्रह्म, और जिसको हम ब्रह्मा कहेंगे, वो केवल रचयिता होते हैं, वो माया से दूर होते हैं। माया में तो हम फंसते हैं। जो भी है, इस ब्रह्मांड में निर्माण करने के बाद जो जो इस सृष्टि में आएगा, वो सब माया में फंसते जाते हैं। तो उनके लिए इस माया का निर्माण किया गया था। इसको लगता था कि मैं ब्रह्मा ने निर्माण किया है, तो इसके साथ विवाह होगा, इसको भी फंसाऊंगी, तो ऐसा नहीं होता। मेरा काम केवल निर्माण का है, बाकी जो होगा सो होगा, उसके लिए मैं कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो इस तरह से फिर उन्होंने दिखाया कि अभी ये ब्रह्मांड नष्ट होने वाला है। योग वासिष्ठ में निर्वाण प्रकरण में, इस जैसे हमने सृष्टि कैसे निर्माण हुई, ये एकदम लीला सरस्वती के स्टोरी में भी देखा था, कि जहाँ पे व्यक्ति अपने ही मन में संकल्प लेता है, अपने ही मृत्यु के समय देखता है कि मेरा जीवन ऐसा ऐसा हो, और उसी जीवन में उलझ जाता है, जैसे ये सब स्वप्न की तरह होता है। तो ये नष्ट भी कैसे होता है। तो दो तरह के नष्ट होने की बातें कही है। एक तो ज्ञान से, कि हम जीवन में ही समझ ले कि ये सब अज्ञान है, ये सब माया है, ये सब स्वप्न है, तो अपने आप वो स्वप्न नष्ट हो जाता है, केवल शरीर के तौर पे ही चलते रहता है। लेकिन ब्रह्मांड के नष्ट होने की भी कहानी यहाँ पे आई थी।
और ये कैसे नष्ट होता है, तो उसमें क्या क्या विनाश होना शुरू होता है, कैसे जो पंच महाभूत होते हैं कि जल है उसका प्रकोप हो जाएगा, तो जल अपना स्थान छोड़ के सब तरफ एकदम बारिश हो जाएगी, समुंदर सब एक दूसरे में मिल जाएंगे। इस तरह से जल का प्रताप होता है। फिर उसके बाद अग्नि, सब तरफ आग लग जाती है, सब जल के नष्ट होने लगता है। वायु का प्रकोप होता है। ये सारी बातें उन्होंने एक के बाद एक सबका वर्णन किया। पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल कैसे होती है ये भी दिखाया। तो योग वासिष्ठ में इस कहानी में बताया गया कि वो ब्रह्मा अपनी जगह आसमान में स्थिर थे, लेकिन उनकी पृथ्वी और पूरे आसमान में, पूरे ब्रह्मांड में जिस तरह के उथल पुथल पुथल हुई उसका वर्णन किया। फिर कहा कि ये सब जब नष्ट हो गया तो वहां पे एक बड़ी सी छाया आ गई, और वो छाया जब देखा जाए तो पता चला कि वो जैसे रुद्र जैसी है। और उस रुद्र में सारा जो भी ब्रह्मांड में था उस सब कुछ उसने अपने आप में खींच लिया। तो जिधर कीचड़ हुआ था, जिधर पानी था, सब कुछ उसने अपने आप में खींच लिया और वो रुद्र में चला गया। और उसके बाद फिर वो रुद्र अपना तांडव करने लगा, डांस डांस जैसे जिसको कहेंगे, नृत्य करने लगे। करते करते उसके सामने और एक छाया प्रकट हो गई, और जैसे हम कहते हैं शैडो जिसको कहेंगे, कि एक कोई डांस कर रहा है उसकी शैडो भी उसके साथ आकर डांस करने लगी। और वो शैडो भी थोड़ी देर डांस करते करते अपने आप में फिर उस रुद्र में समा गई। इसके बीच में कई सारे उसके वर्णन किए हैं। एक वर्णन ऐसा किया है कि वो जो शैडो डांस कर रही थी, जो काली के रूप में थी, उस काली के कमर पे जैसे कुछ बांधे बांधते हैं उस तरह से हर कोई चीज उसके कमर पे बांधी गई थी। यूं कहे कि जैसे हम यज्ञ में आहुति डालते हैं, तो यज्ञ में आहुति डालते समय अगर हमने कोई यज्ञ देखे हैं तो उसमें हर तरह के फल फूल ये सारी बातें होती हैं। इसके कमर में भी जो जो भी इस सृष्टि में हो सकता है, संभव हो सकता है, सब कुछ बांधा हुआ था, और वो ऐसे गोल 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 घूम रही थी। वशिष्ठ ऋषि ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जब उसको देख रहा था कि वो इस तरह से गोल गोल घूम रही है, उसके शरीर पे हर तरह की दुनिया, हर तरह के विश्व बंधे हुए ऐसा लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे विश्व घूम रहे हैं, और घूमते 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 उसका जो डांस चल रहा है उसी के साथ उनका भी नाच चल रहा है। उन्होंने कहा ये तो अच्छा था कि मैं उस इन सारे विश्वों का भाग नहीं था, मैं केवल एक दूर से अपने आप से देख रहा था। ये मैसेज हमारे लिए भी है। वशिष्ठ ऋषि जैसे इस दुनिया को घूमते हुए देखे, जो जो चल रहा है केवल देखे कि अच्छा ऐसा होता है या ऐसा हो रहा है, उसमें इन्वॉल्व होके हम उस काली के कमर पे या शरीर पे बांध के हम भी घूमने ना लगे। क्योंकि अगर हम घूमने लगे तो हम कहते ना दिमाग तो घूम गया करके, तो वैसा नहीं होना चाहिए। जो भी सिचुएशन आते हैं उसके अंदर जाए बगैर उसको बाहर से देखे, तटस्थता से देखे, इंडिपेंडेंटली देखे कि हाँ अच्छा ये ऐसा हो रहा है, चल रहा है। कई बार हम दूसरे के ऑरा में कैच हो जाते हैं। सामने वाला गुस्सा होगा तो हम भी गुस्सा कर लेते हैं, सामने वाले ने आवाज बढ़ाई तो हम भी आवाज बढ़ा लेते हैं। तो थोड़ा अलर्ट रखें कि हाँ ये घूम रहा है, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं स्थिर हूँ। तो वो भूमिका से जीवन जिया जाए। या इस कहानी के कई सारे मतलब थे, मैं जो छोटे छोटे मैसेजेस है वो देने का यहाँ पे प्रयत्न कर रहा हूँ। क्योंकि योग वासिष्ठ की कई लंबी कहानियों में से ये एक है जो काफी काफी पेजेस इसमें कवर किए हुए। तो ये काली का भी नृत्य चल रहा था, और चलते चलते जैसे वो रुद्र के पास आ गई, उस छाया के पास आ गई पहले वाले, उसमें ये समा गई। और फिर थोड़ी देर में सब कुछ नष्ट हो गया। ब्रह्मा और उसके सारे लोग वो भी कब के नष्ट हो चुके थे। ये रुद्र मतलब वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि ये शिव है। ये शिव क्या है? वही ये परमात्मा है जिसमें ये सब कुछ बनता है, सब कुछ बिगड़ता है। और वो जो छाया थी उसकी, वो अ, उसको क्या कहें, कि शिव की ये माया कहेंगे, इच्छा कहेंगे, कि जिससे ये सारा निर्माण होता है। तो ये निर्माण सब कुछ उस छाया में चला गया। और जो इसको हम एक तरह से स्वप्न कहेंगे, या वो एक
स्फुरण कहेंगे, एक वाइब्रेशन कहेंगे कि जो निर्माण होता है और निर्माण होने के बाद जब अपने आप में अवेयरनेस आ जाता है तो अपने आप में समा जाता है। अगर हमने इस निर्माण की कहानी याद है तो इस परमात्मा में जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, अगर इस परमात्मा का वर्णन करना है तो केवल ये क्या नहीं है उससे किया जाता है, जिसको हम नेति नेति कहते हैं, न इति न इति। ये नहीं है, वो नहीं है, ना इसका रंग है ना रूप है, तो क्या नहीं है इस तरह से जिसका वर्णन किया जाता है, उसके बाद जो बचता है वो परमात्मा। तो उसमें कभी एक इच्छा होती है कि जिसको हमने ईशना कहा, एक शब्द उसका उपयोग किया है, कोई इच्छा होती है कि चलो मैं अपने आप को देखूं, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। तो उसके बाद फिर ये सब निर्माण होता है। तो वो जो इच्छा थी, वो इच्छा मतलब वो उसकी छाया थी। एक बार अपने आप से अलग हो गए तो अपने आप को परमात्मा भूल जाते हैं। आज हम भी परमात्मा के स्वरूप हैं, लेकिन हम अपने परमात्मा स्वरूप से अलग हो गए और इसीलिए हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो वो आप स्वरूप। यतीन जी, आप थोड़ा नीति नीति के बारे में थोड़ा और बोलिए, अच्छा, ओके। क्योंकि वो सब लोग को आदत होती है कि नेति नेति बोलने का, बट नेति नेति बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज शंकराचार्य ने भी दिया है। जी। तो आप थोड़ा उसमें ज्यादा लाइट डालिए, जो भी आपकी इच्छा हो। जी। ये ना ध्यान का बहुत सुंदर मार्ग है। मैं कौन हूं ये अगर समझना है तो ध्यान में बैठ जाए और जो भी सामने आता है, बस जो भी दृश्य सामने आता है, अपने आप को बताए मैं ये नहीं हूं। यूजुअली हम किसी चीज में फंसते हैं तो उसका कारण होता है अहंकार। अहंकार क्या है? अहंकार मतलब अभिमान नहीं, अहंकार मतलब अपने अस्तित्व की एक फीलिंग कि मैं हूं, और मैं के साथ फिर मेरा आ जाता है। मैं मतलब कौन? तो हम अपने आप को, इस शरीर को मैं समझते हैं, और फिर इस शरीर के द्वारा जो भी आता है, जैसे शरीर ने जन्म लिया तो माता पिता आ गए। इस शरीर ने किसी के साथ विवाह किया तो वो पत्नी होगी या पति हो गया। इस शरीर के द्वारा फिर किसी का जन्म हुआ तो पुत्र हो गए। इस शरीर से जो माता पिता के द्वारा आए थे वो हमारे भाई बहन हो गए। फिर यही शरीर कहीं स्कूल में जाता है, इधर उधर जाता है तो मित्र बन गए, सखा बन गए। ये शरीर के साथ जुड़े हुए जो जो भी है वो मैं और मेरा। हमने कुछ कमाया, घर बांधा, ये किया तो मेरा घर, मेरा पैसा, हाँ, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, ये सारा जो मेरा आता है वो इस मैं के साथ ही आता है। तो ये मैं है क्या, जिसको मैं कहता हूँ, वो है क्या? हमने कुछ मेडिटेशंस में देखा था कि शरीर में अगर कहीं देखा जाए वो मैं कहाँ है तो उसका कोई सोर्स नहीं मिलता। सर पे है, हाथ में है, पैर में है। ये हमने बलि राजा और प्रहलाद के मेडिटेशंस में देखा था कि ये मैं जिसको कहते हैं वो इस शरीर में, शरीर को मैं कहा जाए तो शरीर में एग्जैक्टली कहाँ है, बॉडी में कहाँ है? अगर किसी की उंगली कट गई तो उस उंगली में मैं है कि नहीं? अगर है तो वो उंगली तो जीवित रहनी चाहिए, उसमें भी मोशन होनी चाहिए। जैसे छिपकली की अगर वो टेल होती है, पूंछ होती है, कट गई तो वो थोड़ी देर के लिए जीवित रहती, और हमारे साथ ऐसा नहीं होता। वही अगर कहा जाए कि चलो एक पोर्शन में होता है, दूसरे पोर्शन में नहीं होता है, सर कट गया तो फिर बॉडी में मैं होना चाहिए या सर में मैं होना चाहिए, दो में से एक कोई तो एक्टिव रहना चाहिए, दोनों भी नहीं रहते। तो ये जो मैं की कंसेप्ट है वो है कहाँ? तो इसमें जो मैं है वो क्या है क्या नहीं है, इसको समझने के लिए जब हम ध्यान में जाते हैं तो जो जो भी सामने आता है उसको बताया जाए कि हाँ ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। और ये सुंदर सा ध्यान हमने किया था पिछले या उसके पिछले बार में। अपने आप को इंस्ट्रक्शन देते गए कि सामने, मतलब मेडिटेशन का जर्नी इस तरह से होते रहता है कि अलग अलग कलर्स आते हैं, ईश्वर दिखा, ऐसा लगता है कि चलो कोई ऋषि दिखाई दे रहे हैं, ईश्वर दिखाई दे रहे हैं, या कुछ और फीलिंग हो रहा है। तो हर बार अपने आप को बस यही बताए कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं। तो ये जो नहीं नहीं कहा गया है, न इति, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, वो फिर जाने के बाद जो बचता है वो हमारा असली स्वरूप है। तो इसलिए न इति एक जर्नी है जिसको कहा गया कि अपने आप को एक्सप्लोर करने का जर्नी क्या होता है।
तो ऐसे ब्रह्म वाक्य कुछ कुछ दिए हैं योग वासिष्ठ में, हमारे स्क्रिप्चर्स में। हर जैसे दर्शन शास्त्र है, अलग अलग दर्शन शास्त्र के अलग अलग ब्रह्म वाक्य दिए हैं। अलग अलग वेदों में वो जैसे 4 वेद हमारे हैं, उसमें भी अलग अलग ब्रह्म वाक्य दिए। उसमें जैसे एक है, गुरु शिष्य को बताता है कि तत्वमसि, तुम ही वो हो। हाँ, या हम कहते हैं सो हम, मैं वो हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ऐसे जो ब्रह्म वाक्य दिए हैं उसमें ये भी एक है, न इति न इति, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। तो ये सारे डिस्कार्ड करके, क्या नहीं है क्या नहीं है करके अपने स्वरूप को समझना, जो बच जाता है सब कुछ निकालने के बाद, वो मैं हूं, इसका अर्थ वो होता है। एडिशनली अगर कोई पूछा कि लाइफ का पर्पस क्या है, तो उसका उत्तर ये भी दिया जा सकता है कि क्या नहीं है वो समझो, फिर जो बचता है वो है। तो लाइफ का पर्पस क्या नहीं है? यही क्रोध करना, लस्ट में फंसना, ग्रीड रखना, ये मेरे पर्पस नहीं है। तो अपने आप को उसका भी अगर उत्तर मिल जाए ना, कि हमारे एक्शन में कभी प्रश्न आ जाए कि क्या मैं सचमुच ऐसा बिहेवियर करना चाहिए मैंने, क्या यही मेरे लाइफ का पर्पस है? तो ये नहीं है वो नहीं जब करेंगे, तब ही हम अपने आप से प्योर फॉर्म में आ जाते हैं। वहां पे भी ये नेति नेति का कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अम, तो पाषाण आख्यान में, हम पाषाण की कहानी में हम देख रहे थे, वशिष्ठ ऋषि ने बताया कि ये सारा ब्रह्मांड नष्ट हो चुका। वो जो इच्छा उस परमात्मा की थी कि जिसके रूप से ये सब कुछ, वो एक बार इच्छा आ गई और फिर अपने आप को, अपने ही स्वरूप को अलग कर दिया। तो उस स्वरूप को, वो जो इच्छा थी वो भी अपने आप में डिसॉल्व होगी, अब परमात्मा में डिसॉल्व होगी। इसलिए उसको छाया वो कहा था कि क्योंकि ये इच्छा ही होती है। एक बार अपने आप से वो परब्रह्म से अलग हो गए, तो बस फिर उलझ गए, सारा घूमते रहे, जो भी चल रहा है सारा निर्माण ही हम करेंगे, उसी को नष्ट करेंगे, यही सब होते रहता है। फिर वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि ये सब नष्ट होने के बाद मैंने देखा आजू बाजू, तो उसी पाषाण में कई सारे ऐसे ब्रह्मांड थे। कई ब्रह्मांडों में यही हो रहा था, कहीं निर्माण हो रहा था, कहीं नष्ट हो रहे थे। फिर वहां से बाहर निकाल के मैं फिर से चिदाकाश में, इस पूरे आकाश में आ गया। फिर मैंने अपने आप में भी देखा, तो मेरे अंदर भी ऐसे ही ब्रह्मांड उमड़ रहे थे। वो भी कुछ बन रहे थे, कुछ बिगड़ रहे थे, कुछ नष्ट हो रहे थे। तो ये खेल हमारे अंदर भी चलते रहता है। एक क्वांटम फिजिक्स के कंसेप्ट के अनुसार, हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं, जो भी डिजायर्स होती हैं, उस समय हम एक तुरंत अपना अलग ब्रह्मांड निर्माण कर लेते हैं। अगर कहीं यूट्यूब पे या कहीं हम थोड़ा सर्च करें तो ये वीडियो मिल जाएंगे। क्वांटम फिजिक्स एंड क्या कहते हैं, माइंड वर्ल्ड्स, ऐसा कुछ हम देख सकते हैं। मन में विचार आ गया, वो विचार हमारा एक विश्व बन गया, और उस विश्व में हमारी कॉपी वहां पे चली जाती है। तो जस्ट इमेजिन करें कितने विचार हमारे मन में आते हैं, कितने ब्रह्मांड हम अपने आप में बनाते हैं, और हमारी कॉपी कितनी जगह चली जाती है। तो इसके साथ तो कई सारे कॉम्प्लिकेशंस और कॉम्प्लेक्स प्रश्न आते रहेंगे, पर सारांश ये है कि हर विचार एक ब्रह्मांड जैसा होता है। जस्ट देखें कि हमारे मन में कैसे विचार आते हैं। कहीं बैठे हैं तो एक के बाद एक कहानियां बनाना शुरू करते हैं। कहीं रिश्तों के बारे में होगी, कहीं करियर के बारे में होगी, अपने प्रोफेशन के बारे में होगी, परफॉर्मेंस के बारे में होगी, किसी के भी बारे में हम कहीं ना कहीं कहानी बनाते रहते हैं। और वो एक कहानी अपने आप में एक विश्व बन जाती है। तो हम जब भी ये अपने आप में देखें तो पता चलेगा कि अरे मेरे मन में तो ऐसे विचार आ रहे हैं, वैसे विचार आ रहे हैं। अब इसको भी अगर तटस्थता से देखें, इंडिपेंडेंटली देखें, तो देखने के दो बेनिफिट्स हैं। एक तो हम अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं कि हाँ, मैं ये नहीं हूं, ये चल रहा है, मेरे मन में ही चल रहा है, लेकिन मैं उससे परे हूं। दूसरा, जब हम ऑब्जर्व करने लगते हैं ना, तो ये विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। मेडिटेशन का ये एक सुंदर तरीका है कि जस्ट ऑब्जर्व करें कि क्या हो रहा है। तो एक वॉचमैन जैसे होता है, और गेट पे खड़ा है, उधर से अगर कोई नटोरियस लड़के आना चाहते हैं उस एरिया में, ये वॉचमैन अगर खाली देख रहा है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। वो लड़के थोड़ी देर इधर उधर घूमेंगे, वापस चले जाएंगे, वहां पे कोई रुकता नहीं। तो यही हमारा, हम अपने मन को देखें
तो ये मन में जो ऐसे नोटोरियस विचार आते रहेंगे इधर उधर से, केवल ऑब्जर्व भी करे तो भी वो अपने आप से चले जाते, शांत हो जाते। श्वास के बारे में तो हमने ये प्रयोग किया है कि श्वास को केवल ऑब्जर्व करें कैसे चल रही है, अपने श्वास चली नहीं जाएगी पर वो अपने आप से स्थिर हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो यही है कि जब हमारी इमोशंस बिगड़ जाती है, हम गुस्से में होते हैं या कुछ डिप्रेस्ड होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में केवल श्वास को देखें और अपने आप से श्वास स्थिर हो गई तो मन भी अपने आप से शांत हो जाता है। मन को शांत करने का डायरेक्ट तरीका थोड़ा कठिन है, लेकिन वही अगर हम श्वास की तरफ देखें तो श्वास से मन भी शांत हो सकता है। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि ये मेरे अंदर भी ऐसे कई सारे विश्व हो रहे थे जो हमारे साथ होते हैं। हम उस रुद्र को समझें, उस क्रिएशन को समझें कि जो बार बार कुछ ना कुछ बनाते रहेगा। हमारा अस्तित्व ही ऐसा है, ये मन ही ऐसा है कि जो कुछ ना कुछ निर्माण करते रहेगा। तो उसको तटस्थ इंडिपेंडेंटली देखें कि क्या चल रहा है और उसको शांत होने दें। एक लेवल तक हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। हाँ, ये बहुत आइडियल एक्सपेक्टेशन रहेगी कि हम सभी कुछ नहीं होने देंगे, मन में एकदम शांत रहेंगे, जो चल रहा है वो चलने देंगे। ऐसा होना थोड़ा कठिन है। हम इतने सालों से इम्प्रेशंस में जिए हैं, तो एकदम से ऋषि या वशिष्ठ बनना तो मुश्किल है। लेकिन उस मार्ग पे चल जरूर सकते हैं, अपने आप को अवेयर कर सकते हैं कि हाँ थोड़ा कभी हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ क्रोध में आ गए, गुस्सा हो गए, कुछ फंस गए, अट्रैक्शंस में उलझ गए, ये होगा। लेकिन लंबे समय तक हम नहीं रहेंगे। थोड़ी देर में ये ज्ञान कभी ना कभी याद आ जाएगा, तो अपने आप को बताएंगे कि अरे चलो छोड़ो, हम कुछ और हैं, इसमें नहीं फंसते, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अपने आप को कभी इस नॉलेज को भी कभी ब्लेम मत करना कि ये इस मार्ग पे चल रहे हैं और अभी तक वो एनलाइटनमेंट नहीं हुई। तो टाइम लगेगा हर बात को। तो रिग्रेट, गिल्ट, कोसना अपने आप को, ये सब ना करें। बेहतर यह रहेगा कि एक्सेप्ट करें ऐसा होता है, बट देयर इज अ स्टेप। दुनिया में कई सारे लोग हैं, हम देखते हैं 800 करोड़ अभी हो चुके हैं, शायद ज्यादा ही हो गए। उसमें से बहुत कम लोगों में से हम हैं कि जो अपने आप के बारे में अवेयर हो रहे हैं। ये कहानी वो बताती है कि अवेयर बने अपने आप के बारे में। हमारे अंदर में भी चलता है, बाहर में भी चलता है, बस देखें क्या हो रहा है। इसके बाद एक और सुंदर कहानी वशिष्ठ ऋषि ने बताई श्री राम जी को। उन्होंने कहा कि श्री राम जी, जैसे ये ज्ञान, ये नॉलेज, ये इनफाइनाइट है, ये कॉन्शियसनेस इनफाइनाइट है, जिसका कोई अंत नहीं है, वैसे इसने जो माया निर्माण की वो भी अनंत है, उसका भी स्वरूप अनंत है। अब हमारे लिए उनका मैसेज कुछ यूं रहेगा। हमने जैसे बलि राजा की कहानी में देखा था कि बलि राजा ने अम, एक दिन विचार किया कि हजारों सालों तक राज करने के बाद भी, सब तरह के सुख भुगतने के बाद भी, ये एक मन में तृप्ति नहीं थी कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो उस समय बलि राजा ने ध्यान किया और उसे असली आनंद की प्राप्ति करनी थी, वो उसने प्राप्त कर लिया। तो ऐसा क्या है कि हम जो भागदौड़ करते हैं कि मुझे और आनंद चाहिए, और आनंद चाहिए, और आनंद चाहिए, और वो जो हम चाहते वो मिलने के बाद भी तृप्ति नहीं रहती। तो इस कहानी के द्वारा वशिष्ठ ऋषि ने बताया कि ये अज्ञान या ये माया, ये भी उतनी ही अनंत है, और इसका हम कितना भी भोग ले लें, हमें मन की शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए इसका नाम ही अविद्या आख्यान, अविद्या की कहानी ऐसे कहा गया है। विपश्चित नाम का एक राजा था। एक दिन अपने सभा में बैठा था, तो उसके पास उसके दूत आ गए। चारों दिशा से चार अलग अलग दूत आए, मैसेंजर्स, और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर चारों तरफ से आक्रमण हो चुका है और अभी हम अपने शत्रु से जीत नहीं सकते, शत्रु हमारे नगर में घुसने लगा है। उस समय विपश्चित ने कहा कि चलो हम लड़ते हैं, मैं थोड़ी अग्नि पूजा करके आता हूं, आप लोग तैयारी, युद्ध की तैयारी कर लो। विपश्चित अपने अंदर कमरे में गया, वहां पे उसने अग्नि प्रज्वलित किया और उसने विचार किया कि अभी तो मैं बूढ़ा हो चुका हूं,
चारों दिशाओं से जब शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है तो उनके साथ मैं लड़ नहीं पाऊंगा। तो अभी मेरे जो आराध्य हैं अग्निदेव, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वो कुछ करें। तब उसने अपने ही सर को काट के उसकी आहुति अग्नि में देनी शुरू कर दी, और फिर उसको अग्निदेव प्रसन्न हो गए। उसने राजा ने कहा अग्निदेव से कि मेरे 4 विष्णु जैसे रूप बनाए जाए और ये 4 रूप जाके इन शत्रुओं से लड़े। तो नारायण सेना के साथ, नारायण खुद जैसे उनकी शक्ति होती है, उतने उस शक्ति के साथ विपश्चित के 4 रूप बने। चारों रूप ये अलग अलग दिशाओं में, चारों दिशाओं में गए। उन्होंने शत्रु को भगाया। भगाते भगाते चारों दिशाओं में वो समुद्र के किनारे तक आ गए। फिर वहां पे उन्होंने देखा कि सब अभी युद्ध शांत हो चुका है, शत्रु का नाश हो चुका है। फिर उन्होंने विचार किया कि ये जो सब दृश्य दिखाई दे रहा है ये क्या है, कितना बड़ा है, इस दृश्य को हम देखने का प्रयत्न करते हैं। फिर उन्होंने फिर से अग्निदेव से प्रार्थना की, और इन चारों ने अपने लिए अग्निदेव से ऐसी शक्तियां मांग ली कि जो जैसे पानी पे चल सकते हैं, जितनी गति से जाना है उस गति से जा सकते हैं, बीच में कोई भी बाधा ना आए, इस तरह की शक्तियां मांग ली, ताकि ये जो निर्माण है, जो भी दिख रहा है वो क्या है, वो समझने का प्रयत्न करें। और उसके बाद चारों 4 दिशा में निकल पड़े। उनकी उनका वर्णन किया गया है कि वो कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हुआ। हम वो सारे वर्णन में नहीं जाएंगे। सारांश ये रहा कि एक जन्म में भी उनकी अगर मन की तृप्ति नहीं हुई तो उन्होंने अगला जन्म लिया, अगले जन्म में भी जाके फिर से देखने लगे। सारे ब्रह्मांडों में, एक नहीं कई ब्रह्मांडों में जो जो भी दिखता है सबका अनुभव लिया। हमारी इच्छा होती है ना, जैसे मैं अभी रिसेंटली यूएस के टूर पे आया था। मेरी इच्छा थी, मेरे परिवार की थी कि चलो यूएस देखते हैं। 45 दिनों में हमने यूएस के सारे कोने छान मार ली। वेस्ट कोस्ट में गए, ईस्ट कोस्ट में नायगरा तक गए, साउथ कोस्ट में की वेस्ट तक गए, साउथ मतलब ईस्ट कोस्ट में फ्लोरिडा तक गए। तो और देखना है, और देखना है। मेरा तो कुछ दिनों में ही सब वैराग्य आ गया था वहां पे, क्योंकि देखे ही चलता था, ठीक है अच्छा इधर पत्थर है तो यहाँ पे पत्थर ही पत्थर रहेंगे, इधर वाटरफॉल से थोड़े ये वाटरफॉल वो वाटरफॉल अलग अलग तरीके रहेंगे। तो इस तरह से वैराग्य जैसे हम थोड़े नॉलेज में रहे तो थोड़ा आ जाता है, या फिर थक भी जाते, बोर हो जाते हैं कि एक समय के बाद हो जाता है अरे अब कितना घूमे यार, बस हो गए, अब जाके क्या देखना है। 2 दिन आराम किया, फिर से लगता नहीं चलो और घूम जाते हैं और थोड़ा देखते हैं। तो ये जो हमारी घूमने की, अलग अलग जगह का खाना खाने की इच्छा होती है, अलग अलग भोग भोगने की इच्छा होती है, वैसे ही उस भोग के, उस इच्छा के बारे में वशिष्ठ ऋषि बता रहे थे कि थोड़ी समय के लिए बोर हो जाएगा, लेकिन फिर से उठ के चलो और देखते हैं, और कुछ करते हैं, और कुछ करते हैं। ये जो और की इच्छा होती है ये नेवर एंडिंग है। इन विपश्चित राजाओं के द्वारा कितना भी घूमे, कितना भी ब्रह्मांड में गए, कहीं पे भी गए, अलग अलग जगह फंसे, वहां से फिर से मुक्त हुए, वही चलता रहा और उसका कभी अंत नहीं हुआ। फिर उन्होंने बताया कि इनमें से 4 विपश्चित में से उनकी 3 कहीं कहीं मुक्त हो चुके थे, कोई अभी घूम ही रहा था, कोई भगवान विष्णु के पास रुक गया, कोई कहीं मुक्त हो गया, और एक था जो हिरण के रूप में था, वो श्री राम जी के दरबार में वहां पे किसी राजा ने उन्हें गिफ्ट दिया था, तो वो एक हिरण के रूप में वहां पे था। तो श्री राम जी को, दशरथ को बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारे दरबार में इनमें से एक विपश्चित है, तो चलो उससे कुछ सुनते हैं कि क्या देखा उसने, ऐसा क्या आश्चर्य था कि जो बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बात थी, कुछ सुने उससे। तो उन्होंने उस हिरण को लेके आए। वशिष्ठ ऋषि ने उस हिरण का, जो विपश्चित का रूप था, उसका आराध्य वो अग्नि फिर से वहां पे प्रकट किया, और उस हिरण से कहा कि आपका मूल स्वरूप जो विपश्चित है, वो आप इस अग्नि में प्रवेश करके उस रूप में वापस बाहर आ जाए। तो हिरण देखते ही देखते उस अग्नि में चला गया, और वहां से एक दिव्य पुरुष ऐसे सामने प्रकट होके फिर वो वहां से बाहर आया, और उसका दशरथ ने स्वागत किया, उसको बिठाया, और फिर कहा कि बताइए आपने क्या क्या देखा, क्योंकि आप तो काफी समय, काफी ब्रह्मांड घूम चुके हैं, तो क्या है देखने जैसा, विशेष क्या है।
अब यहाँ से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कहानी शुरू होती है और ये कहानी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि कोई ऑथर इसको लिखने जाए तो खुद कंफ्यूज होके कुछ पार्ट उसका मिस कर सकते, इतना कठिन है। मैं इसको थोड़ा सुलझाने की कोशिश करूंगा। अम, एक बड़े शव की कहानी, ऐसे इसको कहा गया, शव मतलब डेड बॉडी, उसकी एक कहानी है। बस उस विपश्चित ने कहा कि मैं मैंने तो बहुत कुछ देखा, लेकिन एक विशेष कहानी जो मैं बताऊंगा आपको, वो देखिए कि एक दिन मैं ऐसे ही कहीं घूम रहा था और मैंने देखा कि आसमान में एक बड़ी सी छाया, या पृथ्वी पे एक बड़ी सी छाया पड़ी है। तो मैंने आसमान की तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि एक बहुत बड़ा शरीर, बहुत बड़ी बॉडी ऐसा कुछ था, मुझे ऊपर से नीचे गिर रहा था। और वो शरीर इतना बड़ा था मानो उसने पूरे पृथ्वी को ऑक्यूपाई कर लेगा, इतना बड़ा शरीर था। मुझे बड़ा डर लगने लगा कि इसके नीचे कहीं मैं भी दब के मर न जाऊं। तो मैंने तुरंत अपने आराध्य अग्नि की प्रार्थना की और उनसे कहा कि इससे बचाए। तो अग्नि ने आके उस शरीर में एक छेद बनाया और उस शरीर के छेद से हम ऊपर निकल गए। वह शरीर पूरे पृथ्वी पे गिर गया और गिरने के बाद वहां पे सब इतना इतने जोर से गिरा कि पहाड़ भी टूट गए, इस पानी भी इधर का उधर हो गया, सब पृथ्वी का जो नक्शा था वो बिगड़ गया। उस समय देवता आए, उन्होंने देखा अपनी पृथ्वी का यह हाल है। तो उन्होंने फिर काली की प्रार्थना की, काली से कहा कि आप अपने दूतों के साथ आए और इस शरीर को नष्ट करें। तो काली और उसके फिर जो सारे भूत गण वगैरह होते हैं सब आए, आके उन्होंने उस शरीर को खाना शुरू कर दिया। यहाँ पे बीभत्स रस, उसका वर्णन है। बीभत्स रस मतलब जो दिखने में ऐसा यक लगता है, उस तरह का वर्णन है। उन्होंने सारा शरीर नष्ट किया, उसका खून पी लिया और फिर जो भी उसके फैट्स बचे थे वो फैट्स पूरे पृथ्वी पे फैल गए। ऐसा कहते हैं कि वो मेद, फैट्स को मेद कहते हैं। तो ये पृथ्वी पूरी मेद से भर गई, इसलिए पृथ्वी का एक नाम मेदिनी ये भी पड़ा है, ऐसा इसमें वर्णन किया है। इस विपश्चित ने अग्नि से पूछा कि ये शरीर क्या था, इतना बड़ा शरीर किसका है, क्या पड़ा है। इसके ऊपर अग्नि ने एक कहानी बताई। अग्नि ने कहा कि अभी हम कहाँ पे हैं, वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को विपश्चित की कहानी बता रहे हैं। विपश्चित अग्नि से बात कर रहे हैं, अब विपश्चित अपनी कहानी बता रहा है कि एक बड़ा सा शरीर पड़ा था। उस शरीर का रहस्य अभी अग्नि विपश्चित को बता रहे हैं। अगर ये सारा सीक्वेंस ध्यान में नहीं रहता तो कोई बात नहीं, हमें जैसे कहा है कि सीक्वेंस, कैरेक्टर्स, इसको ध्यान में नहीं रखना है, हमें थोड़ा नॉलेज की तरफ फोकस करना है। तो उस समय अग्नि ने कहा कि एक राक्षस था और उसमें बहुत शक्ति थी। तो बस इधर उधर उत्पात मचाता था, लोगों को तकलीफ देता था। तो एक बार उसने एक किसी ऋषि का आश्रम तुड़वा दिया, बस मस्ती में आके उसने वो आश्रम को तोड़ दिया। तो ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने उस राक्षस को श्राप दे दिया कि तुम अपने आप को बहुत शक्तिमान समझते हो, अभी तुम एक छोटे से चिलिट का, चिलिट मतलब जो मच्छर का छोटा रूप होता है, उसका रूप ले लोगे तो तुम्हारी सारी शक्ति चली जाएगी। फिर वो मच्छर कहीं पे अ, मच्छर बन गया वो राक्षस, और कहीं पे बैठा था, घास के पत्ते पे बैठा था। तो वहां पे एक हिरण आया, हिरण ने उस घास को खा लिया, तो इसलिए ये मच्छर नष्ट हो गया। क्योंकि इसका आखिरी इंप्रेशन, उसने एक हिरण को देखा था, उसको अपने जीव का, अपने जीवन का भय आया था, तो इसका अगला रूप ये हिरण हो गया। तो राक्षस, राक्षस से मच्छर, मच्छर से हिरण। वो हिरण इधर उधर घूम रहा था तो किसी शिकारी ने आके उसका शिकार किया, तो इसलिए इसका अगला जन्म एक शिकारी का हो गया। राक्षस, मच्छर, हिरण और शिकारी, ऐसा उसका जर्नी हो गया। ये कहानी अग्नि उस विपश्चित को बता रहे, जिसकी कहानी वशिष्ठ ऋषि बता रहे। अभी ये हिरण, ये शिकारी इधर उधर शिकार करते करते घूम रहा था।
तो उसने अचानक किसी ऋषि का आश्रम देखा। उस शिकारी ने पूछा कि मेरा कोई हिरन इधर से गया है, तो आपने उसको देखा क्या? तो उस ऋषि ने कहा कि भाई मैं तो अपने आप में ही था, मेरा इधर उधर कुछ ध्यान नहीं था, पर मैंने किसी को देखा नहीं। पर उस ऋषि ने पूछा कि तुम ऐसे शिकार क्यों कर रहे हो, ऐसे अनुचित काम क्यों करते हो? तो उसने कहा, शिकारी ने, कि फिर मेरा पेट कैसे भरेगा अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो ऋषि ने कहा, कुछ अच्छे काम करो, थोड़ा ज्ञान ले लो, मेरे पास बैठो, मैं बताता हूँ, इस आश्रम में तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। तो वो अम, शिकारी उस ऋषि के पास बैठ गया। अभी इनके कुछ दिनों तक चर्चा करते करते एक दिन उस शिकारी ने पूछा कि ये जीवन का स्वरूप क्या है। तब ऋषि ने बताया कि ये तो सब स्वप्नमय है, वास्तव में कुछ होता नहीं है, और इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। वो कहानी मेरी अपनी है, ऐसा उस ऋषि ने बताया। उस ऋषि ने कहा कि मेरा यहाँ पे सब शिष्यगण थे, परिवार था, और उनके साथ मैं अपना समय बिताता था। एक दिन मुझे लगा कि मनुष्य के अंदर क्या होता है वो देखा जाए। हमें बाहर तो दिखाई देता है कि किसी को कुछ पसीना आ रहा है, किसी का कुछ स्माइल हो रहा है, कुछ भी है, जो भी है बाहर का रूप दिखाई देता है, अंदर का रूप क्या है? अंदर मतलब शरीर के अंदर नहीं, मन के अंदर क्या होता है वो मुझे देखना था। तो देखने के लिए मैंने, मेरे सामने एक शिष्य बैठा था, उसके शरीर में मैंने प्रवेश किया, और फिर मैंने देखने लगा क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ना शरीर शास्त्र का भी वर्णन है कि शरीर में जैसे अलग अलग रस प्रवाहित होते हैं, उनका सर्कुलेशन होता है। तो उस रस के साथ फिर मैं शरीर में इधर गया उधर गया, अलग अलग जो पार्ट्स हैं बॉडी के, जैसे लिवर है, हार्ट है, उन सबका वर्णन किया है। तो ऐसे इधर उधर मैं उसके शरीर में घूमते घूमते फिर उसके हृदयाकाश में चला गया, हार्ट स्पेस में चला गया। मैंने देखा ये मेरे शिष्य के शरीर में, मैं उसके हार्ट में था। मुझे सब कुछ थोड़ी देर बाद दो दो दिखाई देना, क्योंकि मैं हार्ट में गया तो मुझे मेरे अंदर जो था वो भी दिखाई दे रहा था, और उसके अंदर जो था वो भी दिखाई दे रहा था। फिर मैं उसके चेतना के साथ एक रूप हो गया। तो उस समय वो जो देख रहा था वो मैं देखने लगा। मैंने देखा उसका जो स्वप्न था, वो स्वप्न का मैं हिस्सा बन गया। और उस स्वप्न में मैंने देखा कि मैं कोई परिवार वाला हूं, मेरा संसार चल रहा है, और उस समय कहीं तो अचानक से बाढ़ आ गई, बहुत बारिश हो गई, और उस बाढ़ में मैं बहते 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 कहीं तो चला गया। फिर इतना दुखी हो गया कि अरे मेरा परिवार टूट गया, मेरा घर टूट गया। हाँ, वो सारे इमोशंस में मैं बहता गया। और फिर जाते कहीं तो एक किसी आ, बहते बहते किसी पर्वत के पास पहुंच गया। उस पर्वत पे जाके फिर थोड़ा मैं बाहर निकला। मैं बहुत दुखी था, और उस दुख में मैंने अपने आप को वो अनुभव किया कि ये मेरा जीवन सब कुछ जो था वो नष्ट हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, मेरे परिवार बह गया। और फिर ऐसे दुख में थोड़ी देर बाद मुझे अचानक से ध्यान आ गया कि अरे, अ, मैं तो वो साधु हूँ, ऋषियों के जो अपने शिष्य के शरीर में जाके कुछ अनुभव कर रहा है। तो मैं तुरंत सचेत हो गया कि हाँ, अरे मैं कुछ तो गड़बड़ चल रही है, मैं वो नहीं हूँ। सपने से मैं निकल के बाहर आ गया। अपने आप को फिर मैंने कहा कि चलो सपना कंटिन्यू करते हैं। अब कंटिन्यू करने से पहले मैंने विचार किया कि चलो जाके बाहर एक बार देखता हूँ, इस शिष्य के शरीर के बाहर जाके देखता हूँ कि क्या हो रहा है। तो मैंने शिष्य के शरीर के बाहर वापस आके देखा, मेरा आश्रम ऐसे ही था, सब कुछ ठीक था। मेरे शिष्य मेरी सेवा कर रहे थे, क्योंकि मेरा शरीर तो ध्यान में बैठा था। तो वो तो एक तरह से निश्चल था, उसका प्रोटेक्शन करने के लिए आजू बाजू में कुछ शिष्य थे। सामने वाले शिष्य भी वैसे ही बैठा था जिसके अंदर मैं गया था। तो सब कुछ ठीक ठाक है ये देख के फिर मैं फिर से उस शिष्य के शरीर के अंदर चला गया। फिर से वही धीरे 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 सपने में आ गया। मैंने फिर से देखा कि मेरा एक परिवार है, मैंने अपना परिवार बसाया है, अपना आश्रम है।
और उसमें मैं आराम से अपना जीवन बिता रहा हूँ। उसके बाद उस स्वप्न में फिर से बाढ़ आई थी, फिर से मैं बह बह गया, फिर से मैंने कहीं जाके अपना आश्रम बनाया। और उस आश्रम में एक दिन एक ऋषि आए। उन ऋषि से फिर मैं बातें करने लगा। बातें करते करते, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करते करते मुझे अचानक से ध्यान आ गया कि अरे मैं तो स्वप्न में हूँ, और मैं किसी से और के शरीर में जाके उसका स्वप्न देख रहा हूँ। मैं तो, ये मेरा रूप है ही नहीं, उस स्वप्न का एक हिस्सा हूँ, किसी और के स्वप्न का हिस्सा हूँ। तो मैंने उस ऋषिवर से कहा कि थोड़ी अनुमति दीजिए, मैं जरा अपने रूप में, मूल रूप में जाकर सब कुछ ठीक है क्या ये देखकर वापस आता हूँ। तो उस ऋषि ने कहा कि अब कौन सा रूप, कहाँ पे जाओगे? तो उस संत ने कहा कि हाँ मैं तो अभी हम ऋषि वन और ऋषि टू कहेंगे। ऋषि वन मतलब जो शरीर में प्रवेश करके स्वप्न देख रहे हैं, और ऋषि टू जो दूसरे हैं वो इनके स्वप्न में आके इनको उपदेश कर रहे हैं। तो दूसरे ने कहा पहले से कि आप कहाँ जाओगे? तो पहले ने कहा भाई मैं किसी के शरीर में प्रवेश कर चुका हूँ, और उसका स्वप्न देख रहा हूँ। तो मेरा जो मूल रूप है उस उसको देखना है, इस शरीर से बाहर जाना है। तो दूसरे ऋषि ने कहा पहले से कि अभी तो ये संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो शरीर था वो भी जल चुका है, और वो जो जिस शिष्य के शरीर में तुम गए थे वो भी जल चुका है। अभी कुछ बाकी नहीं है। अब इन पहले ऋषि ने बोला ठीक है, प्रयत्न करके देखा तो पता चला कि वो कहीं बाहर निकलने का उनको कोई रास्ता ही नहीं था। केवल सब क्या कहेंगे, अंधेरा ही अंधेरा था, कोई रास्ता ही नहीं था। अपने ही जगत, अपने ही इस विश्व में फंस गए थे। अब ये कहानी वो जो पहले ऋषि थे वो एक शिकारी को बता रहे थे। फिर उस ऋषि ने, पहले ऋषि ने इस शिकारी को कहा कि देखो मैं तो वहां पे फंस चुका हूं, उस ऋषि के साथ मैं बैठा हूं, ये रहा मैं, और वो रहे वो ऋषि। अब ये सारी कहानी उस व्याध के बुद्धि के परे थी। वो मन में विचार करने लगा कि मैं और ये ऋषि बैठ रहे हैं, ये ऋषि बता रहे हैं कि ये किसी और के शरीर में जाके उसके स्वप्न का हिस्सा थे, और उस स्वप्न में जो ऋषि थे वो ऋषि यहाँ पे है। ये ऋषि वो ऋषि नहीं है कि जो किसी के शरीर में गए थे। ये ऋषि उस शरीर में जाने के बाद जो स्वप्न में देखा गया शरीर है, जो ऋषि है वो ये ऋषि है। कंफ्यूजन है। हैरी पॉटर से भी बड़ी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है ये। सारांश ये रहा कि हम भी कई जन्मों में स्वप्न देख के अगला जन्म लेके आज मैं एक किसी और का रूप आपके सामने बैठा हूं। मैं जानता नहीं मैं कौन हूं, ऋषि जानते थे, पर मैं तो जानता नहीं कि किसका रूप है, कोई कहाँ पे था। जीते जी या मृत्यु के समय कुछ सपना देखा था कि चलो योग वासिष्ठ बताएंगे। आज सुबह 4 बजे गहरी नींद से उठ के योग वासिष्ठ सच में बता रहा हूँ, या नींद में ही अपने आप ही योग वासिष्ठ बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं। है ना, सारा स्वप्न हो सकता है। ये सारी बात उस शिकारी के समझ के बाहर थी। वो कंफ्यूज था। फिर उसने कहा कि आगे क्या? तो उस ऋषि ने कहा कि दूसरे ऋषि थे, जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उस दूसरे ऋषि ने मुझे व्याध गुरु करके बुलाया, संबोधित किया कि आप व्याध गुरु हो। तो उस समय ये पहले ऋषि ने दूसरे से पूछा, मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन सुन लीजिए, इंटरेस्टिंग है। पहले ऋषि ने दूसरे से पूछा कि ये व्याध गुरु क्यों बोला? तो व्याध का अर्थ होता है शिकारी। तो दूसरे ऋषि ने कहा कि तुम एक शिकारी के गुरु बनोगे, और तुम उसको कुछ उपदेश करोगे, और उस उपदेश का उस शिकारी को कोई फायदा नहीं होगा। अ, उसको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, लेकिन वो अज्ञान में ही रहेगा। और फिर उसकी कहानी यूं होगी कि वो अपने आप से जाके कोई तपस्या करेगा, ब्रह्मा को प्रसन्न कर लेगा, और प्रसन्न करके फिर एक बड़ा शरीर बनेगा, और उसको भी सब कुछ देखने की इच्छा होगी, और बाद में उसका अंत हो जाएगा। अब प्रश्न ये आता है, ये शिकारी जब इसने, वो पहले ऋषि को दूसरे ऋषि ने जो कहानी बताई थी, ये सब शिकारी को समझ में नहीं आ गया।
वो कुछ उनके साथ ही रहा। चूंकि अच्छे वातावरण में रहने के बाद उसको भी कुछ तपस्या ज्ञान इसकी इच्छा हो गई, लेकिन वासना भी वैसी ही थी। तो उसने एक दिन जाके ब्रह्मा से प्रार्थना की, तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। और फिर ब्रह्मा जी को उसने कहा कि मुझे ये विश्व का स्वरूप देखना है, और ये स्वरूप देखने के लिए मुझे आप इतना बड़ा कर दीजिए कि मैं आसमान में जाके एक ही नजर में सब कुछ देख सकूं। जब मेरी इच्छा हो जाएगी तब मेरा शरीर आप समाप्त कर दीजिएगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाने के बाद उस शिकारी का शरीर बहुत बड़ा हो गया। इतना बड़ा हो गया कि उसने जैसे पूरी पृथ्वी को ऑक्यूपाई कर लिया, देखने लगा। और जब ये पूरी पृथ्वी उसने एक ही नजर में देख ली, उसका जो भी क्या क्या चल रहा है, किधर किधर क्या चल रहा है, हमारी भी इच्छा होती है ना, हम पूरी पृथ्वी तो छोड़ो, दूसरे के जीवन में जाके देखते हैं, नाक खुपसते हैं कि इसके जीवन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, ऐसे देखते रहते हैं ना। बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। किसी को फोन किया तो और बता क्या चल रहा है, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इस तरह के हम क्वेरीज करते रहते हैं। तो ये जो देखने की इच्छा थी वो हर एक की, हर मानव की इच्छा होती है, वही उसकी भी थी। उसने सब कुछ देख लिया। और फिर जैसे उसका कार्य समाप्त हुआ तो उसका शरीर इतना बड़ा पृथ्वी पे गिर पड़ा। अग्नि ने इस विपश्चित को कहा कि ये वो शरीर है जो एक राक्षस से मच्छर बना, मच्छर से हिरण बना, हिरण से शिकारी बना। और वो शिकारी एक ऋषि को मिला, जो ऋषि वास्तव में नहीं था, वो किसी और के स्वप्न का अवतार था। और उसके बाद फिर ये सारा जो देख रहे हो, तो ये वो शरीर है उस शिकारी का जो इतना बड़ा बन के गिर पड़ा। फिर विपश्चित ने पूछा इसका आगे क्या हुआ। तो कहते कि वो शरीर तो नष्ट हो गया। और रहा रहे ऋषि की बात, तो वो कहानी में कहीं आती नहीं, वो तो फिर आधे अधूरी छूट जाती। क्या वो ऋषि अपना आश्रम में था, जो भी चल रहा था चल रहा था। ये शरीर किसका था, ये व्याध कौन था, इसका आगे क्या हुआ, क्योंकि ये तपस्या के मार्ग पे था, तो ये कौन था। तो ऐसा कहते हैं कि यही शरीर आगे जाके इसने एक राजा का रूप लिया, और वो राजा का नाम था सिंधु नरेश। अगर हमें कहानियां याद है तो लीला सरस्वती की कहानी हमने कभी देखी थी। उसमें लीला का जो पति था पद्म राजा, उसका अगला जन्म था विदुरथ का। उस विदुरथ का एक राजा के साथ युद्ध हुआ था, उस राजा का नाम था सिंधु नरेश। ये वही सिंधु नरेश था। क्योंकि थोड़ी सी साधु संत हुआ था, साधु संग हुआ था, इसलिए सिंधु नरेश को, उसे कभी तो ज्ञान भी हुआ। उस समय सिंधु नरेश ने सरस्वती से विजय की मांग की थी, इसलिए वो जीत गया। विदुरथ ने मुक्ति की मांग की थी, इसलिए विदुरथ को मुक्ति मिल गई थी। सिंधु नरेश ने कुछ समय के बाद, जीतने के बाद विचार किया, जो अभी इस शिकारी का अगला अवतार था। उसने विचार किया कि मैंने जीत तो प्राप्त कर ली, पर ऐसा क्या विशेष था, क्या प्राप्त किया, जीत जीत के भी मैंने क्या लिया। लोगों को तकलीफ ही दी होगी, युद्ध किया, किसी की हत्या हो गई, ये सब हो गया। फिर उसने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्रीवर, ये क्या है। वो राजा राजा तो ऐसा लगता है कि मुक्त हो गया है, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। तो मंत्री ने कहा कि हाँ, क्योंकि उसने अपेक्षा मुक्ति की थी। फिर सिंधु ने कहा कि अब मैं ये सब छोड़ दूंगा। तो सिंधु नरेश ने अपना राज्य वगैरह सब छोड़ दिया, और वो भी तपस्या करके बाद में वो भी मुक्त हो गया। कहानी का तात्पर्य यह है कि ये सब स्वप्न है। कितना भी देखें, कितना भी उपभोग लें, तृप्ति होने वाली नहीं है। अगर ये आज समझ में आता है तो इसके पीछे भागने में भी मतलब नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आप में से काफी सीनियर है पर मेरे जैसे जूनियर है, अगर कल पत्नी ने कहा चलो मूवी देखते हैं, तो उसको उपदेश देने में मतलब नहीं है कि क्या देख के करना है, वैसे भी सब भ्रम है, सब झूठ है, ये है वो है, ऐसा ऐसा नहीं करना। जाके देखे। सबकी क्या कहते हैं, जीवन जीना है तो उसमें थोड़ा बहुत मनोरंजन ये वो रहे, पर वो कैसे रहे कि थोड़े डिटैचमेंट के साथ रहे। उसके पीछे क्रेजी हो जाए, पागल हो जाए, बस वही करे, इसकी आवश्यकता नहीं है। मेरे कई दोस्त हैं जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ज्यादा प्रेफरेंस रखते हैं। ये मूवी आ गई, चलो देख लेते हैं थिएटर में जाके।
इस होटल में नया आइसक्रीम, वो कुछ तो पुणे में है, उसका नाम भूल गया मैं, आइसक्रीम की चेन है, तो हर महीने में नया फ्लेवर आता था उनका, तो चलो जाके वो ट्राई करते हैं। हाँ, इतना क्रेजी नहीं होना चाहिए भोग के लिए, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होने वाले। जो कभी खत्म नहीं होने वाले उसको कितना एंजॉय करेंगे, शरीर भी थक जाएगा और फिर भी मन की तृप्ति नहीं रहेगी। तो मन की तृप्ति की तरफ ध्यान दें। हमने इसका अनुभव भी, योग हमने कभी ध्यान में लिया है कि आनंद की परिभाषा क्या है? आनंद ये एक्सपीरियंस है, आनंद वस्तु में नहीं होता। हाँ, जो आनंद मैं अपने आप में आंखें बंद करके लेता हूँ, अपने आप में जो अनुभव लेता हूँ, वही आनंद मुझे अगर कोई अच्छा गुलाब जाम खाने को मिल जाए तो भी आता है। जस्ट फील करिए, एक्सपीरियंस करिए कि आनंद क्या होता है। नायगरा फॉल्स देखने के बाद जो वाव फीलिंग होती है, वही फीलिंग हमारे अंदर एक अच्छा गुलाब जाम खाए तब भी होती है, तब भी हम कुछ और देखें तो वो भी होती है। वो जो वाव फीलिंग है, वो जो आनंद का अनुभव है, वो हमारे अंदर है। दृश्य तो फिर बदलते रहेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस सेम रहता है। आप कितना भी करें, थोड़ा ध्यान करने के बाद पता चलेगा कि एक्सपीरियंस अंदर में वही है। अगर यह बात है एक्सपीरियंस की, तो वो एक्सपीरियंस हम बिना किसी साधन के अपने अंदर ले सकते हैं। फिर मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, एंजॉय करना है ना, अपने आप में बैठ के एंजॉय करो। श्री राम जी की डिमांड यही थी कि मुझे बताए कि बिना किसी टूल्स के, बिना किसी साधन के, बिना किसी व्यक्ति, परिस्थिति, टाइम, किसी भी बात के सिवा मैं अपने आप में एंजॉय कर सकूं। अगर ये ज्ञान हमें मिल गया कि किसी चीज के पीछे, और इसको ये ज्ञान कैसे मिल सकता है कि जिसके पीछे हम भागते हैं उसमें वो कितना व्यर्थ है, कितना शून्य है, ये अगर समझ गए, दो चीजें होगी कि जिसके पीछे भागते हैं उसको नकारना, और फिर जो चाहिए वो प्राप्त करना। तो हमें आनंद तो चाहिए, तो आनंद हमें अपने आप में मिल सकता है, इसका अनुभव ध्यान के द्वारा लेना, ये एक बात हो गई। और जो बाहर जिसके पीछे भागने वाले हैं, वो सब झूठा है, उसमें मतलब नहीं है, क्योंकि वो नायगरा फॉल्स के पास तो मैं 24 घंटे खड़ा नहीं रह सकता आनंद लेते हुए, वहां से तो हिलना ही पड़ेगा, है ना। गुलाब जाम कंटिन्यूअसली खा नहीं सकता आनंद लेने के लिए, थोड़ी देर बाद वो भी बोर होने लगेंगे। ये सारी बातें क्षणिक है, पर अपने आप का आनंद, मैं चाहे कहीं पार्टी में रहूं, कहीं शोक में रहूं, किसी भी दुख में रहूं, किसी भी सिचुएशन में रहूं, अपने आप को आनंद रख सकता हूँ, क्योंकि वो अंदर का एक्सपीरियंस है, वो नेवर एंडिंग है, बाहर की चीजें खत्म होने वाली है। तो ये एक बार समझ में आ गया तो आदमी बाहर की तरफ नहीं भागेगा, जो अपने अंदर ही है वही असली आनंद ले। तो नेवर एंडिंग हैप्पीनेस कहाँ है? नेवर एंडिंग हैप्पीनेस अंदर है। नेवर एंडिंग भोग अगर लेने हैं तो अंदर है, वो बाहर के तो खत्म हो जाएंगे, या फिर उनका स्वरूप बदलते जाएगा, एक खत्म होगा दूसरा शुरू होगा, तो वो हिसाब से वो भी कभी खत्म नहीं होगी। पर अंदर का अनुभव वो बिना किसी एफर्ट के आसानी से मिल सकता है, उस अंदर के अनुभव में रहे। इसके बाद एक अंत में बहुत सुंदर सी कहानी, जो मैंने एकदम शुरू में बताई थी, वही फिर से बताऊंगा। योग वशिष्ठ की एक कहानी है, एक कुंददंत नाम के व्यक्ति की। उस कहानी में ऐसा बताया गया था कि ये कुंददंत श्री राम जी से मिलने के लिए आया। उसको एक साधु ने एक कहानी बताई थी कि 8 भाई तपस्या कर रहे थे, और वो तपस्या करते करते उन्होंने वर मांगे थे कि वो अपने आप को, उन्हें पृथ्वी का राजा बनना था, अधिपति बनना था। तो उनकी तपस्या चलती रही। उनकी तपस्या के दौरान उनकी जो पत्नियां थी, उन्होंने विचार किया कि हमारे पति हमारे साथ नहीं रहते, तो हम कुछ ऐसा करें कि ये सारे हमारे साथ रहे। तो उन्होंने भी अपनी देवी की प्रार्थना की, और ये वर मांग लिया कि ये हमारे पति हमारे साथ रहेंगे। प्रश्न ये आता है कि 8 के 8 पृथ्वी के राजा कैसे बन सकते? कोई एक ही राजा बन सकेगा। अगर राजा बनना है तो इन पत्नी की जो डिमांड थी उसमें वो घर में कैसे रह सकेंगे? वो घर में रहना संभव नहीं है। इसके ऊपर इनके जो माता पिता थे, वो कभी अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़े कि ये कहाँ जाके फंस गए हैं, जरा उनको लेकर आते हैं। तो निकलते निकलते वो इतने जल्दी में थे कि सामने से जब दुर्वास ऋषि आ रहे थे, तो दुर्वास के तरफ भी इनका ध्यान नहीं था। इनके पैरों की धूल उड़ के दुर्वास ऋषि के ऊपर गिर पड़ी,
तो दुर्वास ऋषि तो पता है छोटे से बात पे भी क्रोधित हो जाते हैं। तो क्रोधित हो गए, उन्होंने इनको श्राप दे दिया कि आप जो भी आपके बच्चे वर प्राप्त करेंगे वो विफल होगा, आपकी बहुएं जो भी प्राप्त करेगी वो भी विफल होगा, उनको कुछ मिलेगा नहीं। अब प्रश्न ये आता है कि इसमें से क्या होगा। तो उस साधु ने बताया कि इनका क्या होगा, जो होगा वो मैं आपको वर्णन कर रहा हूं। बात यह होगी कि इनकी मृत्यु होने के बाद, ये आठों भाइयों की मृत्यु होने के बाद, वो अपने ही विश्व में अपना स्वप्न देख के राजा बनना चाहेंगे। लेकिन मृत्यु के बाद इनके वर और इनके श्राप, इन दोनों में झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा क्या होगा? वर कहेंगे कि हम श्रेष्ठ हैं क्योंकि भगवान ने वर दिया है, तो इन्हें राजा बनना चाहिए। अब श्राप कहेंगे कि ऐसा तो संभव नहीं, ऋषि ने तो श्राप दिया, दुर्वास ऋषि है, तो ऋषि के श्राप तो कभी झूठे नहीं होते। फिर ये ना तो राजा बनेंगे ना ही ये अपने घर में रहेंगे। फिर दोनों में इतना युद्ध होने लगेगा कि मतलब झगड़ा होने की संभावना हो जाएगी कि फिर वो विचार करेंगे कि चलो आगे जाके भी हमारे इस युद्ध का कोई परिणाम तो होने वाला नहीं है, झगड़ने का कोई परिणाम होने वाला नहीं है। तो एक लेवल तक हम ये करें कि जाके किसी के पास कोई मेडिएटर है उसके पास चले जाएंगे और उससे सॉल्यूशन मांग लेते हैं। फिर वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद ब्रह्मा जी पूछते हैं कि चलो देख लो एक दूसरे के अंदर जाके कि कौन किसकी इच्छा प्योर थी, किसकी वासना प्योर थी। इसको कहा है कुछ तो शब्द उसका प्रयोग किया कि किसकी इच्छा अच्छी थी। तो दोनों एक दूसरे के हृदय में जाके देखते हैं। फिर श्राप कहते कि हम तो थोपे गए थे, हमारी इच्छा नहीं थी कि ऐसा हो करके, पर या इनकी इच्छा नहीं थी कि ऐसा कुछ हो करके, वर है कि इन्होंने मांगा था। तो वर श्रेष्ठ है, जो भी वर को चाहिए वो होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ, ये मुझे याद है मैंने पहले सेशन में हम सबसे बताया था कि हम क्या मांगे, हमारे साथ क्या होने वाला है उसके प्रति सकारात्मक दृष्टि से विचार करें। इन लोगों ने मांगा था कि इन्हें पृथ्वी का अधिपति होना है, वो मिल जाएगा। दुर्वास ऋषि का श्राप था जो इन्होंने मांगा नहीं था, इसलिए उसका उनके ऊपर कोई परिणाम नहीं हुआ। अब कई बार हमारे जीवन में यह भय रहता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा तो नहीं होगा, कुछ वैसा तो नहीं होगा। तो ये भय भी हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम अगर अच्छे राह पे चल रहे हैं, और मुझे यकीन है हम चल रहे हैं, तो अपने कर्मों के ऊपर विश्वास रखें। कभी शायद मैंने ये भी बताया था कि हमारे सबसे अच्छे मित्र अगर कुछ है तो हमारे कर्म होते हैं। वो कर्म इस जीवन में ही नहीं, कई जीवन में हमारा साथ देते हैं, क्योंकि कर्म ही है जो जीवन के बाद रहते हैं। बाकी तो हमारे जो भी मित्र है वो तो मित्र, सखा, संबंधी, रिश्तेदार, ये सब यहीं पे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हमारे कर्म ये हमारे साथ एक जन्म नहीं कई जन्मों तक रहते हैं। और अगर अच्छे कर्म रहे तो हमें विश्वास भी देते हैं, हमें बल भी देते हैं। जब भी कभी मुसीबत आ जाए तो हम पहले अपने कर्मों को याद करते हैं कि नहीं, मैंने अच्छे काम किए हैं, मेरे कर्म अच्छे रहे, वो मेरा साथ देंगे। कभी कभी हम अपने आप को कोसते हैं जो नहीं करना चाहिए। कुछ गड़बड़ हो गई तो हम कहते हैं ना कि ऐसे क्या कर्म थे मेरे कि जो ये भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसा ना करें, जो है उसको प्रसाद ले, प्रसाद समझ के खा जाए, लेकिन कर्मों को दोष नहीं देना है। हमारे कर्म अच्छे ही रहे यही समझे और यही बताए, तो यही कर्म हमें सपोर्ट करते हैं। जब भी मुसीबत आएगी तो बताएंगे कि नहीं, अच्छा कर्म था, तुमने अच्छा किया है। एक मन की शांति रही, मन का बल रहा, तो हम उस सिचुएशन को ठीक से हैंडल कर सकते हैं। अगर कर्मों को दोष दिया, मन को दोष दिया, तो फिर हमारा मन भी कमजोर हो जाता है, और कमजोर मन फिर उस सिचुएशन में कोई ठीक से निर्णय नहीं ले सकता। तो जो सिचुएशन आएगी वो तो फेस करनी ही है, तो उसको फेस करना है तो एक अच्छे मन से अगर फेस करेंगे तो कुछ अच्छा निकलने की संभावना तो होती है कम से कम। हार गए, डर गए, कोसने लगे तो फिर निश्चित है कि कुछ अच्छा निकलना मुश्किल है। तो अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि और अगर इन्वेस्ट करना है तो अपने कर्मों में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करें।
आज मेरा इंट्रोडक्शन देते हुए सचिन जी ने कहा कि मैं माया में भी फंसाता हूँ, इन्वेस्टमेंट कैसे करना वो बताता हूँ। तो मैं ये भी बताता हूँ कि सच्ची इन्वेस्टमेंट ये हमारे कर्म है। ये तो बाकी केवल एक उपजीविका करना है, पेट भरना है, इसके लिए सब करते हैं, पर कर्मों में हमेशा इन्वेस्ट करें। तो और उसके बाद फिर ये विश्वास रखें कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। हमारा भय, हमारा डर हमसे नेगेटिव बातें करवा सकता है, वो संभावना होती है, इसलिए उससे सावध रहें। ये कहानी वशिष्ठ ऋषि ने सारी कहानियां बताई थी, लेकिन ये कहानी श्री राम जी ने वशिष्ठ को बताई कि ये कुंददंत नाम का व्यक्ति मेरे पास आया था, उसने अपनी अपनी कहानी ऐसे बताई। तो कुंददंता का ये था कि वो इन 8 भाइयों को वो देख रहा था, और उसके बाद फिर वो तो चले गए। कुंददंत अकेला पड़ गया, तो उसने उस ऋषि से पूछा कि जो जिसने इस कुंददंतों के इन 8 भाइयों की कहानी बताई थी, कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो बोर हो रहा है, कोई जीवन में रहा ही नहीं। उस समय कुंददंत को उस ऋषि ने कहा कि अब तुम जाओ अयोध्या, वहां पे श्री राम जी हैं, उनके साथ रहो, उधर तुम्हें सही ज्ञान मिलेगा, और वशिष्ठ ऋषि ये ज्ञान श्री राम जी को देंगे जिसकी तुम्हें प्राप्ति होगी। अच्छा, इधर कहानियों में इस कहानी में अगर थोड़ा पीछे आ जाए, तो वो आठों के आठों भाई, उन्होंने अपने मृत्यु के समय अपना ही विश्व निर्माण किया, अपने ही विश्व के राजा बन गए। चूंकि मृत्यु घर में ही हुई थी, उनकी पत्नी की जैसी इच्छा थी, उनका जीव उसी घर में रहा, उस पत्नी के साथ ही रहे, तो सारे वर्ग की पूर्तता हो गई, श्राप का तो कोई काम नहीं था। अब ये कुंददंत यहाँ पे श्री राम जी के साथ दरबार में बैठा है, वशिष्ठ ऋषि से उसने वो सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसने कहा कि मुझे आज मुक्ति का अनुभव हो गया। इसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने अपनी वाणी को विराम दिया, वो रुक गए, और उस समय जो वहां पे दरबार में थे, अनेक ऋषि संत सिद्ध ये सब आए थे, उन्होंने फिर वशिष्ठ ऋषि की तारीफ की। शुरू में तो सब शांत रह गए, अपने आप में किसी की हिलने की भी इच्छा नहीं थी कि इतना सुंदर ज्ञान प्राप्त हुआ है, और ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य हमारे काम में आ गए, जो हमें ये इतना सुंदर ज्ञान मिल रहा है। फिर उन्होंने एक एक ने उठ के वशिष्ठ ऋषि की, श्री राम जी की तारीफ करना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि हम पता नहीं कितने ब्रह्मांड घूम चुके हैं, पता नहीं कितने जगह जाए गए हैं, कितना ज्ञान हमने सुना है, लेकिन ये ज्ञान ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सारे कर्मों का, पुण्य का फल है कि जो आज हमें इस तरह से प्राप्त हुआ। सबने इसी तरह से तारीफ की, सब कुछ उनके ऊपर फूलों की वर्षा हुई। फिर महाराज दशरथ उठे। महाराज दशरथ ने वशिष्ठ से कहा कि आपके कारण मैं मुक्ति के मार्ग पे चल पड़ा हूं। अभी मेरे पास आपको देने जैसा कुछ नहीं है, जो भी है वो सभी आप ही का है, लेकिन फिर भी अपने परिवार सहित मेरे इस राज्य को आपके चरणों में अर्पित करता हूं। आप इसका स्वीकार करें, आपकी जैसे आज्ञा है वैसा आप इसका उपभोग लें, इसका आप जो करना है वो करें। तब वशिष्ठ ने कहा कि महाराज, मैं तो ऋषि हूँ, राज्य चलाना, राज कारभार करना ये आपका काम है, ये आप ही रखें, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, जो है वो आपसे मुझे मिलता है, मैं तृप्त हूँ। फिर श्री राम जी गए। श्री राम जी ने वशिष्ठ से कहा कि मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए। मेरे पिताजी ने अपनी ओर से सब कुछ दिया जिसको तो आपने नकारा है। मैं अगर कुछ समर्पित कर सकता हूँ, अगर कुछ दे सकता हूँ, तो मैं केवल आपके इस चरणों पे अपना माथा रख के अपना प्रणाम ही आपको मैं समर्पित करता हूँ। वो लीजिए, उसका आशीर्वाद दीजिए। और ऐसा कह के श्री राम जी भी शांत हो गए। फिर ऐसे ही भरत, शत्रुघ्न, सारे भाई मंत्रीगण, इन्होंने भी वशिष्ठ ऋषि के पास अपनी प्रार्थना व्यक्त की। तब वशिष्ठ ने कहा दशरथ से कि महाराज दशरथ, ये आपके यहाँ वाक यज्ञ, वाचा का यज्ञ, ये पूरा हुआ है। 18 दिनों तक योग वासिष्ठ चला। तो अभी मैं आपको इसके फल भी बताता हूँ। जो भी योग वासिष्ठ को सुनता है, सुनाता है, इकट्ठा बैठ के एक दूसरे के साथ चर्चा करके सुनता है, अपने आप में पढ़ता है, उसे कई सारे यज्ञों के फल मिलते हैं। राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये सारे यज्ञ के
फल उसको प्राप्त होते हैं। उसके जीवन में तृप्ति होती है, वो फिर से जन्म नहीं लेता, उसको निर्वाण मिलता है, ये तय है। बस इसका अभ्यास बार बार करते रहना चाहिए, इसका अनुभव लेते रहना चाहिए। और ये पूरा होने के बाद आप अभी अपने राज्य में उत्सव मनाएं, सभी को दान दें। जिस तरह से हम कोई बड़ा महोत्सव मनाते हैं उस तरह से इसको मनाया जाए। उसके बाद फिर उस राज्य में, अयोध्या में, एक बड़ा सा उत्सव मनाया गया। नाच गाना, महाराज दशरथ ने सभी को अच्छे से दान दिया, सबकी पूजा की, और फिर ये उत्सव वहां पे, ये योग वशिष्ठ का कार्यक्रम वहां पे समाप्त हो गया। अब शुरू में जैसे मैंने बताया था कि ये योग वशिष्ठ वाल्मीकि ऋषि ने भारद्वाज को और अरिष्ट नेमि नाम के उस राजा को बताया। तो ये बता रहे थे, तो उस समय भारद्वाज जो उनके शिष्य थे वाल्मीकि के, उन्होंने कहा कि ऐसा ज्ञान मिलके तो बड़ी तृप्ति होगी है। उन्होंने अपना समाधान उनके पास व्यक्त किया। अरिष्ट नेमि राजा था, वो भी मुक्त हो गया। अरिष्ट नेमि की कहानी बताने वाला वो इंद्र का दूत था। आपको शायद ये कहानी फिर से अभी शुरू से याद नहीं होगी, तो सीक्वेंस इनिशियल ऐसा था कि सुतीक्ष्ण नाम के एक ब्राह्मण ने अम, अगस्त्य ऋषि से प्रश्न पूछा था कि कर्म श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है। उसके ऊपर अगस्त्य ने बताया था कि कर्म और ज्ञान एक पंछी के दो पर होते हैं, दोनों से उसको उड़ना पड़ता है। ये वैसे जीवन के लिए दोनों आवश्यक है, कर्म भी आवश्यक है और ज्ञान भी आवश्यक है। उसके लिए उन्होंने एक कहानी बताई थी कारुण्य नाम के एक लड़के की, जिसके पिता का नाम था अग्निवेश। ये कारुण्य सब कुछ पढ़ाई करके आश्रम से आया था, लेकिन कंफ्यूज था। उसको बताया गया, उसने कहा कि एक तरफ कहते कि ये सारे पूजा कर्म कांड ये सब कुछ करके मुक्ति नहीं मिलेगी, दूसरी तरफ कहते कि जीवन भर यही करना चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कर्म करूं कि नहीं करूं। तो उसके उत्तर में फिर उसके पिता ने एक कहानी बताई थी सुरुचि नाम की एक अप्सरा की, जो एक किसी पर्वत पे बैठी थी। उसने एक दूत को देखा इंद्र के कहीं आते जाते। उसने उस दूत से पूछा कि कहाँ से आ रहे हो। तो उस दूत ने कहा कि मैं अरिष्ट नेमि नाम के एक राजा को वाल्मीकि के पास लेके गया था। पहले तो अरिष्ट नेमि तप कर रहा था, उसको मैंने स्वर्ग का आमंत्रण दिया, पर उसने स्वर्ग का आमंत्रण ठुकरा दिया। तो उसको पूरे ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैं वाल्मीकि के पास लेके गया था, जहाँ पे वाल्मीकि ने वशिष्ठ रामायण बताया। वशिष्ठ रामायण कहते हैं इसको, महारामायण कहते हैं, योग वशिष्ठ कहते हैं, उत्तर रामायण भी कहते हैं। तो ये जो पूरा सीक्वेंस था वो ऐसे बैक अभी आना शुरू हो गया कि वाल्मीकि, भारद्वाज, अरिष्ट नेमि से इंद्र का दूत, उसका दूत से वो सुरुचि नाम की अप्सरा, अप्सरा से कारुण्य अग्निवेश, और उनके यहाँ से सुतीक्ष्ण। ये सब पूरा एक एक जैसे इनके पास आ गया, तो बड़े तृप्त हो गए, उनके जीवन सफल हो गए। मैं आज इस सीरीज के समाप्ति के साथ भी यही प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन भी सफल रहे, ये आश्वस्त रहे, इस बात में विश्वास रखे कि योग वशिष्ठ सुनना ये हर एक के भाग्य में नहीं होता। जिन्होंने ये सुना, पृथ्वी पे बहुत कम लोग हैं कि जो इतने भाग्यशाली है कि जिन्हें ये सुनने को मिलता है, और मेरे जैसे बहुत कम भाग्यशाली की जो बार बार सुनाते हैं। तो अपने आप को जीवन में हमेशा तृप्त रखे, समाधानी रखे कि हम एकदम जीवन सफल ही है ऐसा समझे। थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहेगा तो ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन अंत ये अच्छा ही रहेगा, इसका विश्वास रखें। आपने मुझे अवसर दिया ये आपके साथ बात करने का, शेयर करने का। मेरा फिर से रिवीजन हो गया, मुझे फिर से आनंद मिला। तो इसके लिए आपके प्रति मैं हमेशा ऋणी रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा। आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, पर्टिकुलरली सचिन जी, योगेंद्र जी, वीणा जी, पूरी टीम। और आशा करता हूँ कि ऐसे आपके संपर्क में रहने का फिर से बार बार मौका मिलेगा। इस बहाने नहीं उस बहाने आपके संपर्क में आते रहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you so much. I'm sure everybody enjoyed it and very interesting. Yog Vashisht, not too many people talk about that, क्योंकि ये रामचंद्र जी की लाइफ में at the age of 16 it happened. So usually हम लोग रामायण की बात करते हैं, और ये उनका early childhood है. So very interesting really.
learned a lot, really learned a lot. So very interesting, really. We enjoyed. And Sachin ji one day will share all the videos, because these things, I think, it's not one time we hear. बैठे बैठे कभी सुनना ही चाहिए. Whenever we have a free time, there's no need of gossiping, calling friend, क्या हो गया, हो गया जो हो गया. Better to listen some satsang like this. So it elevates us also and give us the joy inside. So that's what we all are looking here, the joy. That's why ICC is for, So that's very nice. Thank you, Yatinji. We'll be in touch with you. So we will see him some other topic. I just like और I think इंदिरा Sulva जी कुछ कहना चाहते हैं आप? वीणा जी मैं कुछ कहूँ? बड़ा अच्छा लगा. बोलिए, Thank बिल्कुल you. बिल्कुल. वीणा मैं जी भी बोलना मैं भी कुछ चाहती हूँ, कहना ज्यादा नहीं, चाहती हूँ. थोड़ा. हाँ, तो Yes, सुभाषिनी जी भी एक एक को एक बुलाते करके. हैं. एक को करके, बुलाते या. हैं. पहले इंदिरा जी इंदिरा कुछ जी बोलो. बोलिए. नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. मैं कभी ज्यादा ध्यान नहीं देती इन चीजों में सुनने में, पर आज बड़ा मजा आया कि कहानी के बीच कहानी, 8 कहानियां, फिर फाइनली कि कर्मा पे डिपेंड करता है, कि अच्छे कर्मा पे ही सारा कुछ डिपेंड करता है. दैट्स द जिस्ट. सो वेरी गुड. थैंक यू. ओके, आपने सुभाषिनी इतना जी. टाइम लगाया. मेरा ये कहना था कि आपका बताने का ढंग इतना प्रभावशाली है, क्योंकि ज्ञान शायद ऐसा है जो कि पता सबको है, पर उधर की तरफ वृत्ति लोगों की जल्दी नहीं जाती. कोई चीज ऐसी नहीं है कि भाई अच्छे कर्म करो, ये किसको नहीं पता है. मेरे ख्याल से हर शख्स समझ जानता है, पर उसको समझता नहीं है. तो गुरु का अर्थ यही है कि वो इतने प्रभावशाली से बताए जो कि सुनने के ऊपर प्रभाव पड़े. तो वो आपके मुख से, श्रीमुख से सुन करके उस ओर प्रवृत्ति बढ़ती है. इसलिए बहुत अधिक आनंद आया. आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए. व्हेरी नाइस. सुलभा जी. जी थोडासा इनसे मराठी में बात करते हूँ. यतीन जी बिलकुल. खूप छान सांगितलं तुम्ही. अगदी फार आवडलं. एकच फक्त माझं मधलं चुकलं त्यावेळी, डॉक्टरची अपॉइंटमेंट होती म्हणून. पण खूप छान. आणि आता रेकॉर्डिंग मिळणार आहे ना, ते आम्ही परत परत ऐकू. आणि इतक्या पहाटे उठून तुम्हाला इतक्या पहाटे सकाळी उठून आमच्यासाठी त्रास आहे खरं म्हणजे हा, तरी पण तुम्ही तो सगळा घेतलात. आणि हे खरंच योग वासिष्ठ तसं समजायला अवघड आहे. फार लोकांनी वाचलेलं नसतं आणि त्याचा निदान चांगला परिचय झाला. आणि त्याप्रमाणे आपल्या कर्मांकडे लक्ष ठेवणं हेच शेवटी सगळ्यात महत्वाचं आहे, आणि ते चांगले ठेवले पाहिजेत. हे मुख्य सूत्र. पुन्हा तेच माहित नसतं असं नाही, पण ते आमच्या मनावर आणखी ठसवलं. आणि यामध्ये ठसवण्यासाठी खूप कथा आहेत. कथांचं ऐकायला माणसाला लहानपणापासून त्याची आवड असते. त्यामुळे कथेच्या रूपाने जे ज्ञान मिळतं ते पटकन ऍब्सॉर्ब होतं, जास्त समजतं. फक्त एक अत्यंत काय म्हणतात पारमार्थिक लेक्चरच दिलं तर कदाचित एखाद्या वेळेला ते डोक्यावरनं जातं. पण या म्हणजे योग वासिष्ठाची ही जी एक्सप्लेन करण्याची त्या ग्रंथाची जी ताकद आहे ती तुम्ही आम्हाला आमच्यापर्यंत पोहोचवलीत. अत्यंत अत्यंत आभारी. खूप धन्यवाद. मनापासून आभार. Thank you. So wonderful. So wonderful. I know 4-5 of you are Marathi here. So, but we understood what you were saying. Yeah, generally you understood what I said. I know. Yes, I do. I'm sure everybody has to. Yes, we did. अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, some of you are coming tomorrow in person meet at ICC Tri-Valley. So looking forward to meet you in person, and we have the big program planned out. So hoping to see everybody on time. We start 10:30 to 11 social. After that, we have some entertainment, bingo, then the lunch. So मैं थर्सडे का प्रोग्राम बता देती हूँ. थर्सडे को बलजीत जी का टॉपिक है नेचर. आई थिंक बलजीत जी वोंट बी हियर. मस्ट बी विजय जी इज टेकिंग केयर ऑफ. ओके, विजय जी विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट. वेरी नाइस. सो यतिन जी, थैंक यू सो मच फ्रॉम ऑल ऑफ अस. थैंक यू सो मच. सो मैंने जो कोट अभी लिखा है वो है ऐसे: द माइंड मैनिफेस्ट इटसेल्फ. It is through one's own effort alone that the immortal, all the blissful Brahmic seat can be obtained. सुंदर.
बहुत सुंदर. छान. It's all our choice, right? Thank you Yeah, so it's all much. ours. We see you on Thank you. Thursday, and some of us will meet tomorrow. So thank you so much. And I Thank think you. also share what impact it made on you after 7 months. क्या change हुआ? Neti. Definitely, yes. Oh, you are not. And I always say another word which is from Dhampa Charveti. Keep on going, keep on going. Charveti, right? Charai. Yeah. In Dhampa, that's what Buddha said, you know. So thank you so much, everybody. We are so Thank blessed. you. Thank you. Thank you everybody Thank for you. your enthusiasm and joining this Thank you. program. And again, formally thanks to Thank you. Good Kinji night. for waking up early and joining. And Yes. for your dedicated service to us. And his smiling face also. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yo. फार सुंदर, फार सुंदर. खूप मजा आली ऐकून. आणखी परत परत या सांगायला आमच्या. परत परत ऐकायला आवडेल. जी. सचिन जी मी बंद करू का? Yeah, बंद करो. या